Yes, sir. Definitely. A very good morning to one and all present for this webinar. I am Dr. S.P. Narkhede on behalf of KK Wagh College of Pharmacy Nasik and KK Wagh Institute of Chandori, KK Wagh Institute of Pharmacy Chandori welcomes you all for this auspicious event. KK Wagh Education Society is a leading educational trust in Nasik district from past 50 years. It was established by the visionary leader late Padma Shri Karmavir Kaka Saheb Wagh. There are total 38 institutes running in 9 different campuses and engaged in studies from KG to PhD in various fields. KK Wagh is known for academic excellence and is most trusted brand in education across Maharashtra. India is one of the leading global producers of affordable and cost-effective medicines and vaccines. Skilled and trained professionals plays an important role in the growth of pharmaceutical industry. The pharmaceutical field offers a variety of job and career opportunities to the young talented pharmacy graduates with sound background in pharmaceutical sciences. Graduation plays a critical role in shaping one's professional career. After completing graduation, you are supposed to have a superior knowledge in particular stream of education. Graduation provides a base that you can utilize to realize your dreams. While many students find a right way to fulfill their dreams, a majority of them find it difficult to choose the right career option after graduation. The confusion in choosing right career option is natural. You have numerous career options after graduation in pharmacy, like production, marketing, research, regulatory jobs, many more. Therefore, you may need to seek a guidance and support from experienced counselor in choosing the best career after graduation in pharmacy. Thus, the main focus of this gathering is to discover various career opportunities in the pharmaceutical world 2020. To give a small tour of pharma world, today we have among us a very eminent personality, Mr. Sufi Ayaz, founder, Rumi Consultancy, Navi Mumbai. First of all, I would like to request our principal, Dr. K.S. Jain sir, to welcome our today's speaker and share his thoughts on this occasion. Please, sir. Thank you, Dr. Narkhede, and I welcome wholeheartedly Mr. Sufi Rumi, Thank you whom so much. I heard twice on YouTube. And first time when I heard him, I requested Dr. Anwar, who I know since more than 1 decade. I said I liked his style, very practical and very down to line, and covering minute details of what to do and what not to do. And this practical training or this practical words of wisdom will be very useful for our students. These are a sort of a soft skill. It's not necessary. I recollect that he was telling that you may be a topper, but you don't know how to present yourself. Then many a times you may not get the position which you are trying for. So if you do this also, half the battle is won. And he told very minute things, even that how your appearance matters, how your composure matters, how your little bit of homework about that company matters, how little bit of your organization of documents matters, and what to speak and what not to speak. All these things are very, very important. And then 2 Sundays back also I just connected to the regular event of Dr. Anwar, which is a very good thing. Almost 25 are over, and every time he comes forward. Even the next event also is very good on GPAT, 100 hours preparations for GPAT.
I suggest, I have already passed on to Bedse madam and what you say, Kadam madam, and I am going to make it viral on the groups also. And those 80 students who have shown interest in GPAT, they should definitely attend that next Sunday's webinar also. So last to last Sunday's his webinar, I was stunned that he broke my record, and within 1 hour he got almost 3,000 plus views. My record was of 2,500 views. So I was really, because his style is very unique. He speaks very simply and down to earth, and practically he speaks. And I'm sure with the grace of God, if the connectivity is all good and reception is good, which we have definitely seen this with GoToWebinar. And so day for yesterday, Dr. Narkhede actually had a trial also, and which was successful. So Dr. Rumi's introduction, formal introduction will be definitely given, but he is a person with a little bit what you can say, extra vigor, and besides doing his regular job, he is also into this soft skill development, and I am sure he will very soon become a self-earning professional, successful professional, or rather he has already started that. He is an enterprising fellow, and he has a particular passion for this type of development of the students. And if this session is very successful, I will take a feedback also from the students. We will have more sessions on regular basis, because Mr. Sufi is already conducted or regularly conducting such sessions even in Manipal or with the LM College of Pharmacy and other things which he had told me earlier. So this can be a very good addition to our TPO activity which Dr. Narkhede is doing, and we are regularly trying. I think you people will also appreciate that we have been trying many things. We had 2 days workshop by Gati. We had another good thing on GPAT also we had by Najma Inamdar, as well as with Ajaj Nathani. And we are also planning to have more by Dr. Ravi Vishwanath from Milan, and we may also have in future by Neutralitica person, by proprietor Mr. Kelkar, who is a good friend of mine, and Dr. Narkhede and myself, we are trying to bring in more people, and we are trying to establish a network. So our students will be nicely placed. We have also done certain things in the practice school also, where few students like 8 plus 7, 15 plus another 3, 18 students are already doing online internship in collaboration with some industries. This is definitely going to do value addition to their biodata. And we are also planning the same thing for the coming semester. And we are doing this well in advance. So I want all my students to be happily placed. Whosoever wants to be placed will be placed. Some students have expressed, most students have expressed desire to go for higher studies, and we have already done 2 GPAT sessions. With this, we are going to have more GPAT sessions, and we are also going to do some in-house test. Our academic committee is working on that. Our staff is going to work on that, and therefore we want to give maximum benefit to our students. And in this line and in this philosophy, today's event is also organized, and I am very sure that you are going to love his unique style of presentation and talking. And I hand over to you, Mr. Narkhede, Dr. Narkhede, to continue the program, and then we will collect. The students are requested to give their feedback in the chat box, and we will definitely like to communicate that back to the today's honorable speaker. So, and we look forward for more such sessions, and all the best, Mr. Sufi, for today's session. And thank you again for giving your consent and obliging us. And I also await for a wonderful session. Thank you. It's my pleasure, sir. It's my pleasure. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir.
Good morning to our today's speaker, respected principal sir, my colleagues, and all my student friends. I am Dr. S.P. Narkhede. Welcome you all for today's session. It's a great pleasure for me to introduce our today's speaker, Mr. Sufi Ayaz, founder of Rumi Consultancy, Navi Mumbai. He is going to guide us today about career opportunities in pharmaceutical world 2020. Mr. Sufi Ayaz is a founder of Rumi Consultancy, which is known for brand training, brand solutions, and brand communication. Working as a marketing consultant and trainer, established in January 2017, based at Belapur, Navi Mumbai. Sir has more than 12 years of experience in pharmaceutical industry like Elder, Sanofi, Encore, Centaur, Hetero, Ranbaxy in different segments like gynecology, critical care, nutraceutical, ortho, respiratory and general segment as a marketer. Sir has received Excellent Brand Trainer Award in January 2019, Young Consultant Award in March 2018, Brand Guru Award in July 2017. Sir is a guest faculty of more than 110 colleges like Nagpur University, Rumta College, Bombay College of Pharmacy, Institute of Chemical Technology, LM College of Pharmacy, Ahmedabad, etc. Sir is IPA member and treasurer of PDP Pharmacist Development Program, an initiative by IPA Sub-Branch Mumbai. Sir is leading speaker about product and sales category and member of Empower organization at Mumbai. Now, with this beautiful introduction, I request Mr. Sufi Ayaz sir to take a charge and guide our students. Please, sir. Thank you, Narkade sir, and thank you, Kishore sir. Once again, it's my pleasure, and I am very fortunate to be the part of KK Wagh College of Pharmacy in Nasik. And it's my honor that I have been associated with one of the most inspirational organization, Inspirational Pharmaceutical Institute, where you have drive to different academic programs, continuous basis, develop the students, upcoming pharmacist buddies, and today's the most important sessions that career opportunity into the pharmaceutical world. As I am a pharmaceutical consultant and trainer, so today I would like to share some insight about what are the opportunities and avenue is available in Indian pharmaceutical market called as IPM, Indian Pharmaceutical Market, followed by what are the skills are required, how you become a production officer, how you become an associate professor, what are the different ways skills are required to become the part of marketing and strategy like product executive to product manager to marketing head, followed by how you enter into the part of research and development, and the most important part, many people want to start their pharmacy shop as a pharmacist. So what are the common challenges and how you improve and develop that business plan as an entrepreneur and would part of the business model. So different modules, different processes are required. So one by one I can elaborate the career opportunity, followed by some people are wanted to be the part of that. If I want to be go to the industry, so what are the common sets of question, common set of answer जो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस भी रहेंगे, what are the common answer you need to deliver while you interacting with the employer, and followed by some basic understanding about the personality development, so that would be the amalgamation of your knowledge, communication skills, so that you can choose the right path to be the part of your prosperous career. So with this note, I would like to share my slide. Please allow me to share my slides so that one by one I can share the detailed things in my PowerPoint presentation. Yes, sir. You can see the presenter now. Show my screen. Show my Okay. screen. Okay. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. First slide is the opportunities in pharmacy. Is it okay? Yes, sir.
Opportunity in pharma sector. The slide is visible, sir. This is the first slide. So once again, I thanks to Kishore sir, Dr. Kishore sir, Narkhade sir, and entire pharmacy college staff who has given me a wonderful opportunity to share the different opportunities, career in pharmaceutical sectors. So one by one, I can share the things with you about pharma. The basic understanding about pharma is divided into D pharma, B pharma, M pharma, PharmD or PhD. Because why I am sharing these slides, that it's a very basic slides. Because after the completion of your B pharma, when you go for the interview, people will ask you, okay, you did B pharma, it's a 3 years course or 4 years course. So basic understanding, it's a 4 years course. It's a technical course, it's a professional course. So when you detail that I did my B pharma from so and so college, it's a 4-year professional technical courses where you need to learn 1, 2, 3, whatever the learning you have, you can elaborate. So pharma is divided into D pharma, B pharma, M pharma and PharmD. एक चीज है इसमें कि B pharma 4 years का रहता है, 80 लगा के बैकलॉग लगा के हो सकता है 5 to 6 year का हो सकता है, but it is not appreciated. So एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर B pharma 4 years का है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 4 years में कंप्लीट हो जाना चाहिए. डिप्लोमा 2 साल का है तो 2 साल में हो जाना चाहिए, बिकॉज मेनी ऑर्गेनाइजेशन सेज वन एलिजिबिलिटी दैट थ्रूआउट 60, पहला क्राइटेरिया होता है थ्रूआउट 60, मतलब पूरा 4 साल 60% होना चाहिए और नो एटीटी नो बैकलॉग. तो विद इन 4 years आपका कंप्लीट होना चाहिए. तो डी फार्मा 2 साल का, बी फार्मा 4 years का, एम फार्मा 2 years का, एंड फार्मडी डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, 4, 5, 6 years जैसा भी है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज से डिपेंड करता है, या पीएचडी आप करते हैं. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि बी फार्मा इज अ टेक्निकल कोर्स, 4 years course affiliated from AICT PCI. ये basic understanding है, so that you elaborate that what is all about pharmacy. अभी पहला क्वेश्चन कभी कभी इंटरव्यू पूछते हैं, ओके यू डिड बी फार्मा, सो व्हाट डू यू मीन बाय फार्मेसी, व्हाट डू यू आइडेंटिफाई अबाउट फार्मेसी. कभी कभी हमको ये पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन होता है, ओके आपने बी फार्मा किया है फार्मेसी में, तो फार्मेसी क्या होता है. अभी जनरल लैंग्वेज में एक दुकान, एक औषधि केंद्र जहां एप्रॉन पहन के एक आदमी खड़ा रहता है जो दवाई बांटता रहता है, रंग बिरंगी दवाई रहती है, कभी सिरप रहती है, कभी लिक्विड रहता है, कभी ओरल रहता है. तो इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में याद रखने के लिए मैंने एक एक्रोनिम बनाया है. व्हाट इज फार्मेसी इज STP. वन मोर टाइम, STP. व्हाट इज फार्मेसी? इट्स अ साइंस एंड टेक्निक dispensing and preparation of medication called as pharmacy. One more time, it's a science, continuously development, it's called as science and technique of preparation. Different technologies involved for the preparation and dispensing of medications. So continuously innovations, continuously science behind that pharmacy for the development of medications, followed by different formulation is used like oral, solid, parenteral, suppositories, and variety of different formulation. It's a science, regular innovation and development. It's a science and technique dispensing and preparation of medication is called as pharmacy. So in the pharmacy, what is the role and responsibility in the pharmacy? If you are a pharmacist, so what is the role and responsibility of the pharmacist is to impart knowledge and information, knowledge about the drugs. जो दवाई है, एग्जाम्पल पैरासिटामोल है, कब खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, कहाँ काम आएगा, व्हाट इज द थेरेपेटिक एक्शन, what is the adverse effect, when you take, how long you take, any contraindication is there. So जो नॉलेज आप पढ़ रहे हैं बी फार्मा में, इसको यूज कहाँ करना है. देखिए पहले साल में, फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद आपके नेबर्स, आपके फैमिली मेंबर ही आपसे पूछते हैं, डॉक्टर ने एक मेडिसिन दिया हुआ XYZ, कि डॉक्टर ने ये मेडिसिन दिया है, ये बताइए इसको किस काम आता है, इसको कैसे खाया जाता है. ये फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद ये परसेप्शन हमारा सोसाइटी का इतना पॉजिटिव परसेप्शन है कि पीपल विल आस्क डायरेक्टली कब खाना है, कैसे खाना है और क्यों खाना है, बिकॉज दे एक्सपेक्ट कि फार्मासिस्ट को सब पता रहता है, फार्मेसी स्टूडेंट्स को सब पता रहता है मेडिसिन के बारे में. और अगर मैं बी फार्मा में अच्छे से नहीं पढ़ाई करूंगा तो ये चीज में हाउ आई इम्पार्ट माई नॉलेज, how I deliver my knowledge, how I counsel the patient in right way for the patient information about drug information. So my dear friend, our pharmacist responsibility is to impart knowledge, instruct and guide regarding the medicines. जैसे मैंने बताया, when you use, how you use, or what is the use of that, what is the therapeutic action of that, followed by
Ultimately, the main objective of pharmacies is to the betterment of the health of the society, betterment of the health of the country. So my dear friend, कभी भी कोई भी अगर फार्मेसी के बारे में पूछता है तो जो 4 साल का नॉलेज है, फार्मेसी साइंस एंड टेक्निक, डिस्पेंसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो साइंस एंड टेक्निक में बहुत सारे सब्जेक्ट आप 4 साल में पढ़ेंगे, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्यूए क्यूसी, फार्माकोग्नोसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट का एक अपना सिग्निफिकेंस होता है। ये मुझको बी फार्मा में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन कौन से सब्जेक्ट है। फार्मास्यूटिक्स जिसमें फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स होता है, जिसको बनाने का विधि बताया जाता है, जिसमें प्रिपरेशन के टेक्निक्स रहते हैं, तो फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग फार्मास्यूटिक्स, स्टडी ऑफ ड्रग फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी मतलब नेचुरल एक्सट्रैक्ट से जो दवाई बनती है, फ्रॉम क्रूड ड्रग से लेके प्रिपरेशन होती है, हर्बल प्रिपरेशन होते हैं, वो स्टडी ऑफ दैट हर्बल एंड प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज फार्माकोग्नोसी। जो भी रूल्स रेगुलेशन लॉज मुझको पता होना चाहिए बनाने के लिए, बेचने के लिए, वो जो सब्जेक्ट है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एक भी कोई मॉलिक्यूल होता है, पैरास्टामोल होता है, तो उसमें क्या मॉलिक्यूल होगा, किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से फॉर्मुलेशन में ये हेल्प होगा, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होता है। क्यूए क्यूसी रिलेटेड टू पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी एश्योरेंस है। फार्माको विजिलेंस अगर होता है तो रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट होता है। तो एवरी सब्जेक्ट, व्हाट आई मीन, मैं बताना ये चाहता हूं कि फार्मेसी में एवरी सब्जेक्ट आर इंटरलिंक्ड। अगर आप बोलते हैं कि एग्जाम प्रिपरेशन की फार्माकोलॉजी के लिए मैं ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी पढ़ूंगा, ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस नहीं पढ़ूंगा, दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच, दिस इज नॉट द प्रोफेशनल अप्रोच टू रीड एंड स्टडी द प्रोडक्ट। सो ये कहने का मतलब है कि पूरे सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड हैं, तभी हम आधा सब्जेक्ट थर्ड ईयर में पढ़ते हैं और आधा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी का हम लोग फाइनल ईयर में पढ़ते हैं। तो एवरी सब्जेक्ट आर इंटरलिंक्ड। जैसे मैंने बताया फार्माकोलॉजी बनता कैसे है, बेचना कैसे है, कौन से लॉज हैं, कौन से नेचुरल प्रिपरेशन से मेरी बनी हुई है, फॉलोड बाय क्या केमिस्ट्री है, क्या मॉलिक्यूल है, किस तरीके से इसका क्वालिटी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन मेरे को मेंटेन करेगा। सो फार्मेसी इज द स्ट्रीम, इट्स अ साइंस एंड टेक्निक, dispensing and preparation of medicines by integrated all the subjects, so that after gaining the knowledge into the B Pharma, you impart knowledge, proper counseling to the patient, guide with the right set of right intention for the betterment of the health of the society, betterment health of the country. So take home from this slide कि पूरा सब्जेक्ट मेरे को पढ़ना है, पूरा सब्जेक्ट इंटरलिंक्ड करके पढ़ना है, बार बार पढ़ना है और कंटिन्यूस पढ़ना है, बिकॉज फार्मेसी से साइंस कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होता रहता है इसमें। तो ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा सेकंड ईयर में भूल गया, ऐसा नहीं है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने नोट्स, अपने बुक्स, अपने प्रिपरेशन, अपने की नोट्स, की स्पीकर के नोट्स, वीडियो, ऑडियो, प्रेजेंटेशन प्रॉपर संभाल के रखें, ये लाइफ लॉन्ग आपके लिए काम आएगा। सो माय डियर फ्रेंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला होता है फार्मेसी, जिसमें मेरा एसटीपी। दूसरा होता है व्हाट डू यू मीन बाय मेडिसिन, व्हाट डू यू मीन बाय मेडिसिन। मेडिसिन मतलब डीटीपी, इट्स अ डायग्नोसिस के काम आता है। मेडिसिन क्या होता है, एक डायग्नोसिस के पर्पज से काम आता है, एक ट्रीटमेंट के पर्पज से काम आता है, एक प्रिवेंशन के पर्पज के काम आता है। तो मेडिसिन इज ऑल अबाउट डायग्नोसिस, ट्रीटिंग, प्रिवेंशन ऑफ अ सिकनेस। तो जो भी मेडिसिन होती है वो 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक डायग्नोसिस के होने से पहले, बीमारी होने से पहले, उसको बोलते हैं डायग्नोसिस पर्पस के लिए कुछ मेडिसिन है, एक ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, एक प्रिवेंशन पर्पस के लिए। सो मेडिसिन इज ऑल अबाउट व्हाट, इट्स डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग अ सिकनेस और प्रिवेंट फ्रॉम द इलनेस। जो भी बीमारी होने वाली उससे मेरे को बचाने के लिए जो मेडिसिन आती है उसको मैं मेडिसिन बोल रहा हूँ। बहुत सारे फॉर्मुलेशन आते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ओरल सॉलिड, ऑइंटमेंट, क्रीम, वैक्सीन, इंजेक्शंस, पैरेंटल, मल्टीपल इसमें फॉर्मुलेशंस हैं। सो मेडिसिन किस काम आती है ये मुझको समझना पड़ेगा। कि कभी कोई पूछता है मेडिसिन से तो सबसे पहले देखेंगे क्या है, कौन सा फॉर्मुलेशन है, टैबलेट है, अब उस टैबलेट में क्या कंपोजिशन है, उस कंपोजिशन का कहाँ यूज है, फिर पेशेंट को किस तरीके से मुझको देना है। बिकॉज जितना अच्छा आपका नॉलेज रहेगा, जितना अच्छा आपका नॉलेज रहेगा उतना अच्छा आप काउंसलिंग करेंगे माय डियर फ्रेंड। सो नॉलेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काउंसलिंग एंड काउंसलिंग इज डायरेक्टली इंप्रूव द परसेप्शन इन द सोसाइटी ऑफ योर इमेज। अल्टीमेटली आपकी इमेज बढ़ेगी सोसाइटी में। तो बेटर यू लर्न द ग्रेट नॉलेज, अच्छा नॉलेज है, अच्छा डिलीवर करें, चाहे वो इंग्लिश में करें, हिंदी में करें, आपकी अपनी और मदर टंग में करें, बट नॉलेज शुड बी इम्पार्ट फ्रॉम योर माइंड्स टू द पेशेंट्स माइंड। मेडिसिन एंड फार्मेसी, ये 2 बेसिक चीजें। फार्मेसी एसटीपी, इट्स साइंस एंड टेक्निक, डिस्पेंसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिसिन, इट्स डीटीपी, डायग्नोसिस,
treatment, prevention of the illness, followed by role of pharmacist and the doctor. Pharmacist formulate the medicines, doctor प्रिस्क्राइब द मेडिसिन. कभी कभी हम लोग देते हैं कि कुछ मेडिसिन हम दे देते हैं, अगर कुछ हमको पता नहीं है उसके बारे में, कुछ शेड्यूल एक्स में आती है, शेड्यूल एच में आती है, शेड्यूल H1 में आती है, डिपेंड करता है कि कौन से शेड्यूल में कौन सी मेडिसिन आती है. सो बिफोर प्रिस्क्राइब तो मैं प्रिस्क्राइब कर नहीं सकता, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, मैं शेयर कर सकता हूं, मैं काउंसिल कर सकता हूं, मैं उसको गाइड कर सकता हूं. तो बेसिक छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं कि फार्मासिस्ट टू फॉर्मुलेट द मेडिसिन एंड डिस्पेंस द मेडिसिन. व्हेन वी टॉक अबाउट डॉक्टर, द रोल ऑफ डॉक्टर इज टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन. छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगी, राइट? अभी फार्मासिस्ट एंड डॉक्टर, फार्मासिस्ट आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. फार्मासिस्ट आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फार्मासिस्ट का इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत यूनिक होता है, बिकॉज फार्मासिस्ट कैन मैनेज द डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट कैन मैनेज द पेशेंट एज वेल. सो इंटरेक्शन एंड आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ. सो जो इंटरेक्शन होता है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, फार्मासिस्ट जो होता है ना बीच का पर्सन होता है, डॉक्टर से भी कम्युनिकेट करता है, पेशेंट से भी कम्युनिकेट करता है, कि डॉक्टर से पूछता है आपने जो लिखा ये बराबर है, और पेशेंट को बताता है ये आपको ऐसे से खाना है, खाने के पहले, खाने के बाद. तो इंटरेक्शन जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, मुझको बोलना अच्छा नहीं लगता, बताना अच्छा लगता, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट, तो आप इंटरेक्शन कैसे करेंगे? इंटरेक्शन characteristics of the pharmacist is interaction is the most important part. अगर आपका इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बॉस आप काउंसलिंग नहीं कर सकते. और अच्छे से काउंसलिंग करने के लिए आपका एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, एक आपका अच्छा प्रेजेंस होना चाहिए, एक आपको ऐसा ऑरा क्रिएट होना चाहिए कि लोग आपसे पूछने में भी खुशी लगे और पॉजिटिव रिस्पॉन्स लगे, और उनको कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए कि जो XYZ पर्सन है जो मुझको मेरे मेडिसिन के बारे में बता रहा है वो सही बता रहा है, इथिकली करेक्ट है, लॉजिकली करेक्ट है, रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स को जस्टिफाइड कर रहा है, माय डियर फ्रेंड्स. सो दैट गिव यू the somehow the uplifting of your confidence to interaction between you, the pharmacist and the patient, pharmacist and the doctor. So you are the very key persons. तो जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट को मिस ना करें, जो समझ में नहीं आता है बार बार पढ़ें. देयर आर सो मेनी ऑथर्स, माइट भी कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ना तो है, समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ द बुक इज वेरी वेरी कॉन्क्रीटिंग. सो आइडेंटिफाई सम अदर बुक जो इंडियन पब्लिकेशंस के होते हैं जिसमें लगता है कि आपको पढ़ने में इजी रहेगा, समझने में इजी रहेगा. लेट्स हैव ए ग्रुप स्टडी विद द हेल्प ऑफ योर प्रोफेसर, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, विद द हेल्प ऑफ योर सीनियर्स. ask many times for the same question कि इसको किस तरीके से देखना है, and how you reply, what you reply. That is the most important point, my dear friend. So pharmacists are the backbone of medical profession. This is the most important. Why I choose pharmacy? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हमेशा सब लोगों को पूछता हूँ कि आपने फार्मेसी को क्यों चूज किया है. कभी कभी किसी को ऐसा लगता है क्या कि मैं फार्मेसी में आके फंस गया. कभी कभी बहुत लोग बोलते हैं अरे मेरे को करना था MBBS बट समय ना हो यार, मैं जबरदस्ती फार्मेसी में कर लिया. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आके फंस गए. जैसे मेरे को MBBS में करना था, स्कोर नहीं किया, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाया, मेरे को इंजीनियरिंग करना था बट मैथ्स मेरा डिफिकल्ट है, या मेरे को कुछ और होम्योपैथिक करना था, आयुर्वेदिक करना था. अगर आपको लगता है व्हाई यू चूज ए फार्मेसी, ये इंटरव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाई डू यू चूज फार्मेसी? MBBS is more better option than the pharmacy. So why do you choose pharmacy? तो इसका मैं आंसर आपको आज मैं बता देता हूँ. पहली चीज, अगर जिसको लगता है मैं फार्मेसी में आके फंस गया तो उसका माइंड वॉश करने के लिए एकदम एक बहुत बेस्ट आंसर है कि मैं फार्मेसी में आके फंस गया. तो इसका आप आंसर खुद ही को बोलो कि जब जब आप बीमार पड़ोगे, जब जब आप बीमार पड़ोगे तब तब आप मेडिसिन मत खाना, बिकॉज मेडिसिन जो बनी है वो फार्मासिस्ट की देन है. It is made by pharmacist only. Medicine is made by pharmacist only. Medicine is made by scientist only. So जब जब बीमार पड़ेंगे तब तब मेडिसिन मत खाना, बिकॉज आपको प्रोफेशन अच्छा नहीं लगता ना. तो आपको क्या खाना है, जब जब बीमार पड़ेंगे तो जंगल में जाके घास फूस आयुर्वेदिक का जो भी चीजें होती है वो खाने का, मेडिसिन नहीं खाने का. बुखार होता है तो पैरासिटामोल नहीं खाने का, बिकॉज ऐसा लगता है ना कि मैं आके फंस गया. और सेकेंड, अनदर लुक एट दिस सेम पॉइंट को कि हाँ अब तो मैं आ गया हूं, अब मेरे को इंप्रूव करना है, मेरे नॉलेज को गेन करने को. तो आज ही आप फैसला कर लीजिए कि ऐसा तो नहीं कहीं आपको लगता है कि फ्रस्ट्रेट लगता है, कि आपको परेशान लगता है, या नेगेटिव वाइब्स आते हैं कि नहीं फार्मेसी में स्कोप नहीं है. बॉस फार्मेसी इज ए ह्यूज एम्पल ऑफ स्कोप.
एंड ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो फार्मेसी में आने का एक रीजन, एक बहुत अच्छा मैं आपको आंसर बताता हूं कि क्यूरियोसिटी एंड पैशन। एग्जांपल, बचपने से मैं देखता हूं, जैसे मैं व्हाई आई चूज फार्मेसी, बचपने से मैं देखता हूं कि जब जब मैं व्हेनेवर आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, एक स्मॉल कलरफुल पिल्स, आफ्टर टेकिंग इट विद इन 1 hour my fever goes down। एक स्मॉल पिल्स, व्हेनेवर आई वाज हैविंग ए वुंड, जब भी साइकिल चलाते चलाते गिरा हूं मैं, तभी तभी एक छोटा सा गोली गोवेरॉन का जब भी मैंने खाया, दर्द कम, स्वेलिंग कम, और वुंड भी हील हो गया। जब भी मैं गिरा हूं तभी तभी मेरे को इन्फेक्शन या कट हुआ है, एक स्मॉल ऑइंटमेंट कॉल्ड एज बीटाडीन, जिसको हम लोग बोलते हैं नीली कलर की दवाइयां, वो लगाया, जख्म भर गया, पस नहीं आया, ब्लैक कलर का उसमें ऊपर लेयर आ गया, और मेरा वुंड जो है 2-4 दिन में ठीक हो गया। सो दैट क्यूरियोसिटी, जब भी आपको पूछेगा कि व्हाई डू यू चूज फार्मेसी, बिकॉज ऑफ माय क्यूरियोसिटी सिंस माय चाइल्डहुड। Whenever I am suffering from the fever, I take a small pills, and because of that small pills, I can realize that how beautifully it works into my body, कि एक गोली मेरे को 1 घंटे में ठीक कर देती है। So that curiosity can improve my thinking process, that how it works, what is the function, how it made it for our human life, how it is a human saving life saving product। So because of that curiosity, I choose pharmacy to understand, और समझने और सोचने के लिए बनती कैसे देखूं तो क्या काम करती, बॉडी के अंदर कैसे काम कर सकती, तो फार्मेसी से बेस्ट ऑप्शन। सेकंड, जब मैंने ये सोचा कि ये मेरे लिए काम कर सकती है, तो बिकॉज ऑफ माय पैशन, मैं पूरे कंट्री के लिए बनाऊं बेहतरीन प्रोडक्ट, टू मेड अ गुड मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। सो बिकॉज ऑफ माय पैशन can produce good qualitative manufacturing products so that many more people can get benefited whenever they are suffering from the fever। So ये क्यूरियोसिटी थी कि समझू काम कैसे करता है। दूसरा ये मेरा पैशन था कि जब मैं ठीक हो सकता हूं तो इंडिया में, दुनिया में बहुत सारे लोग जो बीमार हैं, वुंड की इन्फेक्शन है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन के लिए, सो दैट once I make a pharmacist, I can choose a good profession, चाहे मैं मैन्युफैक्चरिंग में जाऊं, चाहे फार्मेसी शॉप ओपन करूं, with the help of my counseling, with the help of my knowledge, I can give the qualitative input to improve the quality of life। So this curiosity and passion can definitely help me gain the confidence and imparting my knowledge, imparting my confidence at a regular period of time। That's why I choose a pharmacy profession। It's a beautiful, colorful pills can attract me. Curiosity give me the direction, and passion can choose me the right position into that particular place। So ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये इंटरव्यू पूछता है। अभी एक इंडिया के लिए देखते हैं, इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट कितना बड़ा है। पूरा वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूँ, इट्स ए ह्यूज मार्केट। नंबर 1 कंट्री है यूएस साइज में, सेकंड है चाइना, थर्ड है इंडिया। ग्लोबल API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जेनरिक्स में द बिगेस्ट मार्केट इन वर्ल्ड इज यूएस, चाइना, and third is India। India is holding the third largest API generic manufacturing, India। अभी इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ, वर्ल्ड में तो थर्ड रैंक है मेरा इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट का। पूरी वर्ल्ड की अगर मैं बात करता हूं तो पूरे वर्ल्ड में थर्ड रैंक है। और जब इंडिया की बात करता हूं तो व्हाट इज द साइज, इट इज मोर देन 1 लाख करोड़ इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट एज पर द जून 2020, as per the AVEX, the size of the Indian pharmaceutical market is more than 1 lakh crore and growing at the tune of 11% month on month, मतलब डबल डिजिट से ग्रो करता है मार्केट। सो पहला साइज इंडिया में मोर देन 1 लाख करोड़ है। कितनी थेरेपीज है इंडिया में, यू नो देयर आर मोर देन 20 थेरेपीज आर देयर, 20 थेरेपीज। अब एक बेसिक समझ में आता है थेरेपीज क्या होती है। आपने केडी त्रिपाठी पढ़ा है? केडी त्रिपाठी में जब इंडेक्सिंग में देखेंगे तो ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन हार्मोन, ड्रग एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कैटेगरी है ना इसको थेरेपीज बोला जाता है। तो इंडिया में कितनी थेरेपीज, देयर आर मोर देन 20 थेरेपीज आर देयर। फर्स्ट, how many molecules are there, you know there are more than 26,000, more than 26,000 molecules are there in India to catering the different segment, sub segment, sub category, to make and fulfill the right set, to give the right benefit to the right set of patient। So Indian pharmaceutical market more than 1 lakh crore, 20 therapies, more than 26,000 molecule। तो जो 4 साल का आपका लक्ष्य है, आप ये थेरेपीज को अच्छे से पढ़ें,
पूरे मॉलिक्यूल ड्रग्स को ध्यान से पढ़ें, एक एक करके मॉलिक्यूल को समझें कि कहाँ काम करता है, किस तरीके से काम करता है, और किस तरीके से हमारे बॉडी में फंक्शन होता है। ये बेसिक मैकेनिज्म एक्शन को एटलीस्ट आप याद रखें। और छोटी छोटी चीजें हैं, सिम्टोमेटिक, असिम्टोमेटिक, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, उसके बाद रिड्यूसेस, फॉलोड बाय गेनिंग, एक्सीलरेट। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की पूरी कोशिश आप करें। नेवर एवर फॉरगेट एंड मिस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओवर देयर। रीजन टू बिकम ए फार्मासिस्ट, अभी बहुत सारे लोग व्हाई आई, मतलब यही फार्मासिस्ट ही क्यों? बिकॉज 3 रीजन है रीजन टू बिकम ए फार्मासिस्ट। व्हाई दिस प्रोफेशन इज सो नोबल? ग्रोथ, बिकॉज दिस इज द ओनली सेक्टर विच इट इज ग्रोइंग बाय डबल डिजिट। रीजन है कि एक बार पेशेंट, अगर क्रोनिक पेशेंट अगर लैंड अप करता है डायबिटिक में, या दे आर लैंड अप इनटू द हाइपरटेंशन पेशेंट में, बीपी में या डिसलिपिडी में, वंस दे स्टार्ट द मेडिसिन दे कैन नॉट स्टॉप द मेडिसिन्स. So the chronic patients, once they start, they cannot stop to surviving of their life. So continuously उसका growth बढ़ते चले जाता है, because जो chronic patient है जिंदगी भर लेगा, तो जो एक बार patient का base बन जाता है वो गिरता नहीं है. So because this सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हमारे घर वाले भी बोलते हैं एवरग्रीन है, कभी खत्म नहीं होगा, कभी डूबेगा नहीं. रीजन है ग्रोथ, बिकॉज हमारे इस सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल में, पेशेंट बेस है. ये वर्ड याद रखिए, पेशेंट बेस है. वंस दे स्टार्ट द डायबिटिक, आज हो सकता है इंडिया में अगर ऑन एन एवरेज 1 करोड़ डायबिटिक पेशेंट हैं, तो नेक्स्ट ईयर वो 1.5 करोड़ होंगे या 1.2 करोड़ होंगे. कैंसर पेशेंट अगर कोई 10 लाख है, एक सपोज करो एक सिटी बॉम्बे में, तो ऑन एन एवरेज अगर पूरे महाराष्ट्र में 10 लाख हैं, तो नेक्स्ट ईयर वो 10.1 होंगे, 10.2 होंगे, 10.3 होंगे. बिकॉज जो बेस है ना वो कम नहीं होता, बढ़ते चले जाता है. वो उसकी वजह से लाइफ लॉन्ग हमारा प्रोडक्ट यूज होगा, कंज्यूम होगा, तो ग्रोथ है. अपॉर्चुनिटी में आगे बताऊंगा. स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द सेक्टर्स. अभी एग्जांपल बताता हूँ. स्टेबिलिटी का रीजन है, एक तो पेशेंट बेस है, दूसरा यहाँ ब्रांड बेस है. दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में, बाकी के सेक्टर में नहीं. एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल है. ये मोबाइल वीवो का है, ठीक है. आप लोग सभी के पास मोबाइल है, आई एम श्योर. अगर ये मोबाइल खराब हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम क्या मैं सेम मॉडल यूज करूंगा? क्या नहीं, अपग्रेड वाला मॉडल यूज करूंगा. आज मेरे पास बाइक है, XYZ हीरो होंडा की कोई बाइक है, ठीक है. स्कूटर है, मेरे घर में स्कूटर है. अगर वो खराब हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम मैं सेम कलर का, सेम ब्रांड लूंगा क्या, या सेम वही वाला मॉडल यूज करूंगा? रेयरली भी यूज. एक और एग्जांपल लेता हूं. मेरे पास ये शर्ट है, आपके पास भी ड्रेस होगा दिवाली के लिए. पिछले साल जो खरीदा होगा आपने दिवाली के लिए ड्रेस, क्या इस साल सेम ड्रेस आप खरीदेंगे? क्या नहीं. एक अच्छा फैशन में जो चल रहा है, जो ट्रेंडिंग है, उसको आप परचेस करेंगे, राइट. सो हमारे फार्मा इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है. अगर मैं बुखार बचपने में था मुझको, और मम्मी पापा ने, डॉक्टर ने मुझको क्रोसिन दिया था, तो आज भी मैं क्रोसिन लेता हूं, और जब जब बीमार पड़ूंगा तब तब मैं क्रोसिन लूंगा. एम आई राइट? एग्री और नॉट? बिकॉज मेरे पास ब्रांड बेस है. बाकी सेक्टर्स में ऐसा नहीं है. आज मैं नोकिया का मोबाइल लिया, नेक्स्ट ईयर मैं कुछ अपग्रेड मॉडल सैमसंग का मोबाइल लूंगा, जो अच्छा मॉडल में रहेगा, जो अच्छा स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहेगा, वो मैं लूंगा. फार्मा में ऐसा नहीं है. आपकी मम्मी ग्लाइकोमेट जीपी लेती है टू टेक केयर ऑफ हर डायबिटिक. नेक्स्ट मंथ जब भी जाएंगी, तो डॉक्टर फिर से लिखेगा ग्लाइकोमेट जीपी, तो कंटिन्यूसली लेगी. वंस दे स्टार्ट और प्रिस्क्राइबिंग द मेडिसिन कॉल्ड एज लेंटस सोलस्टार, व्हिच इज एंटी डायबिटिक इंसुलिन, जिसके लिए यूज होता है. इंसुलिन है उसमें, पेन वाला. सनोफी का ब्रांड है, 801 रुपए का है, ग्लोबली नंबर 1 ब्रांड है. अगर जो ले रहा है वो स्टॉप नहीं करेगा. कोई थायराइड का मेडिसिन लिया हुआ है, सेम ब्रांड जो थायरॉक्स है, तो वो स्टॉप नहीं करेगा. दे आर कंटिन्यूअसली दे आर टेकिंग द सेम मेडिसिन, बिकॉज हमारे यहाँ पेशेंट का भी बेस है कि डायबिटिक जो पेशेंट बन गए, और उसमें जो ब्रांड यूज हो रहा है वो ब्रांड यूज होगा. वंस यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, डॉक्टर ने यूज किया ऑगमेंटिन 625 DO फॉर यूजिंग एंड मैनेजिंग द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. बॉस आप वही यूज करेंगे, आप दूसरा मेडिसिन यूज नहीं करेंगे. अगर मैं चाहूंगा भी दूसरा देना, तो भी आप यूज नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड, बिकॉज मेरा जो ब्रांड का जो बेस है, ट्रस्ट है, एसोसिएशन है, जो क्वालिटी है, जो रिजल्ट्स मुझको मिला है, जो बाकी के ब्रांड में नहीं मिला है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रीजन टू बिकम ए फार्मासिस्ट, क्यों ये एवरग्रीन है? बिकॉज यहाँ पेशेंट बेस है, ब्रांड का बेस है. सोचिए ना, क्रोसिन आप देख रहे थे, अभी तक देख रहे हैं. डिटॉल देख रहे थे, अभी तक देख रहे हैं. एग्जाम्पल देते हैं, इलेक्ट्रॉल. बचपन में लूज मोशन होता था, हम लोग इलेक्ट्रॉल खाते, आज भी हम इलेक्ट्रॉल यूज करते हैं. मैं आपको बोलूंगा, इलेक्ट्रॉल की जगह एक पिलेक्ट्रॉल करके एक दूसरा प्रोडक्ट आया, यूज करेंगे क्या? आप फार्मेसी में जाएंगे, बोलेंगे ये नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉल चाहिए, आई वांट इलेक्ट्रॉल. वोवेरॉन का टीम है, वोलिनी का जेल है, आपको क्रोसिन है, वोवेरॉन है. बेसिक में एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं बिकॉज हम लोग की दिनचर्या में रेगुलर यूज होती है. इट्स ऑल ओटीसी ब्रांड्स, तो इसको जब भी यूज करते हैं हम लोग, तो बार बार इसको ये यूज करते हैं बिकॉज ऑफ ट्रस्ट,
confidence and the quality, which we are not compromising. So in this sector, patient base है, brand base है, followed by sectors huge, and because of continuously जो population growth है वो भी increases हो रही है, disease incidences and prevalences is also growing. So these are the reason this sector is evergreen sectors. तो कभी कभी इंटरव्यू में आपको पूछेंगे कि फार्मासिस्ट एवरग्रीन है क्या, दिस सेक्टर इज एवरग्रीन फील्ड. यस, इट्स एवरग्रीन फील्ड. Why? Because these are the reasons ki increased number of population, increased number of diseases, there are constant brand bases are increases, followed by patient bases are increases. So these are the reason to become a pharmacist, right? So proud to say I am a pharmacist. Followed by हम जो मॉडल यूज करते हैं फिजिशियन, पेशेंट एंड फार्मासिस्ट. 3P मॉडल हम लोग की इंडस्ट्री में यूज होता है. फिजिशियन जिसमें फार्मासिस्ट पेशेंट को कांटेक्ट करता है, काउंसलिंग करता है और कोऑर्डिनेट करता है फिजिशियन से. तो 3P मॉडल हम लोग यूज करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंपॉर्टेंट एक इंटरव्यू का जो क्वेश्चन होता है माय डियर फ्रेंड, हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर इन अवर बॉडी. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. मैं आप सभी से पूछूंगा हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर इन अवर बॉडी. तो कभी कभी लोग अलग अलग आंसर देते हैं, 8, 7, 10, 12. मैं कई लोगों से क्वेश्चन पूछा है. फाइनली मैं बोला मैं इसका एक आंसर बनाता हूं जो सभी के लिए यूजफुल रहेगा. आई एम श्योर आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा. आर यू इंटरेस्टेड? जानना चाहेंगे? एक बार में कभी भूलेंगे नहीं जिंदगी में. हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर इन अवर बॉडी. अगर कोई आपसे पूछता है तो कभी भी आप नंबर में रिप्लाई नहीं करेंगे. हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर इन अवर बॉडी. देखिए टॉप टू बॉटम बोलेंगे. पहला है नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटिव सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम. टॉप टू बॉटम. वन मोर टाइम. हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर इन अवर बॉडी. नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम. उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये बेसिक आप सिस्टम टॉप टू बॉटम बताएंगे. कभी भी नंबर में आप बताएंगे कंफ्यूज जाएंगे. हाउ मेनी सिस्टम, टॉप टू बॉटम. नर्वस सिस्टम से बात करेंगे और नीचे एक्सक्रीटरी सिस्टम तक. तो पूरी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं. अभी मैं इंडिया का एक ट्रेंड बताता हूं आपको. विच आर द बिगेस्ट सिस्टम. ये जो मेरे पास स्लाइड दिख रही है, एंटी इन्फेक्टिव इज द बिगेस्ट मार्केट. यू नो हाउ मेनी सिस्टम, जो मैंने बताया था कितनी थेरेपी है, मोर देन 20 थेरेपीज आर देयर. सो बिगेस्ट थेरेपी इन इंडिया एंटी इन्फेक्टिव, मतलब एंटीबायोटिक का मार्केट बड़ा है. फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक का मार्केट सेकंड नंबर, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, फिर एंटी डायबिटिक है, फिर विटामिन एंड मिनरल, रेस्पिरेटरी है, डर्मा है. तो अगर मैं ऐसे बात करता हूँ कि एंटी इन्फेक्टिव का मार्केट कितना है तो 17,000 करोड़. नर्वस सिस्टम का मार्केट कितना है तो 8,000 करोड़. डर्मा का मार्केट कितना है 9,000 करोड़. फॉलोड बाय डायबिटिक का मार्केट कितना है तो 12,000 करोड़. तो मतलब एंडोक्राइन डिसऑर्डर, सर्कुलेटरी सिस्टम डिसफंक्शन, सर्कुलेटरी डिसफंक्शंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. तो मैंने क्या किया, पूरे मार्केट को डिवाइड कर लिया. तो पहली चीज है तो आपके समझने के लिए कि कितने सिस्टम्स है बॉडी में, फिर किसमें कौन कौन सा मार्केट सबसे बड़ा है, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आई एम ए मार्केटिंग कंसल्टेंट. सो जो ओवरऑल ट्रेंड है तो एंटीबायोटिक का मार्केट, देन कार्डियक, देन डायबिटिक, देन रेस्पिरेटरी, देन डर्मा, देन पेन, न्यूरो, गायनेकोलॉजिक, देन ऑर्थो, वैक्सीन्स, ब्लड रिलेटेड. दिस आर द नंबर ऑफ सिस्टम्स आर देयर इन अवर बॉडी, वॉल्यूम. एंड उसी के अंदर फिर हम लोग ब्रांड देखते हैं कि उसका कितना बड़ा मार्केट है इंडिया में. सो बेसिक थेरेपी ट्रेंड में अगर कोई पूछता है कि अच्छा डू यू नो इंडियन मार्केट, यस. How big it is? More than 1 lakh crore. How many therapies? More than 20 therapies. How many systems are there? There are top to bottom जो system आप बताएंगे, nervous system, endocrine, respiratory, digestive, musculoskeletal system, circulatory, reproductive, lymphatic, excretory system. And biggest therapies are anti-infective, followed by cardiac and diabetic. These are the common top 3 therapies are there in India. अब ये therapies आप लोगों के लिए क्यों important है? You know क्यों important है? एनीबॉडी कोई बता सकता है ये थेरेपीज मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जब इंटरव्यू में आप जाते हैं तो कभी कभी हमको ये नहीं पता रहता, हम पूछते हैं कंपनी अच्छी है कि बुरी. तो जब भी कभी कोई पूछता है कि कंपनी अच्छी की बुरी, माय डियर फ्रेंड चेक करो उसका थेरेपी किसमें है, उसका थेरेपी कौन से थेरेपी में, कौन से सेगमेंट में उसका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है. ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि इंटास में जा रहा हूं मैं, अभी इंटास अच्छी की बुरी. लोग पूछते हैं अरे इंटास आई है, इंटास अच्छी कंपनी है क्या? तो हम लोग बोलते हैं हाँ अच्छी है. मैं बोलता हूँ अच्छी बुरी नहीं है. इंटाज इज हैविंग ह्यूज कंपनी, इट्स टर्नओवर मोर देन 10,000 करोड़, followed by having a very strong presence in neurological system. 5 division है, 30% revenue neurological disorder products आता है, epilepsy, Alzheimer disease, depressions. ये उसका main strong therapies है. Sun Pharma में जाते हो, हाँ there are 3 therapies are very strong. Sun Pharma is more than 12,000 crore company in India.
बिगेस्ट थेरेपीज आर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सीएनएस में उनका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, गायनिक में उनका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, डर्मा में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और क्रोनिक सेगमेंट लाइक एंटी डायबिटिक में. These are the 4 therapies. They are very very strong, and the revenue generated from these 4 therapies are more than 60%, my dear friend. तो कभी भी किसी भी कंपनी को चेक करते हैं तो ये इस तरीके से उसके थेरेपी को चेक करें. अभी थेरेपी मिलेगी क्या? उसके वेबसाइट में क्लियर कट लिखा रहता है, these are the biggest therapy, we have a very strong presence in CNS, strong presence in cardiovascular, strong presence in orthopedic segments, so basic skeletal muscle disorder. तो ये जो बेसिक थेरेपीज हैं ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी अच्छी है. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं. एक्सक्यूज मी, हेलो. हाँ. अच्छा, तो फिर से कनेक्ट कर रहे हैं आप. ओके जी. ओके, ठीक है. So sorry disruption because some power cutting and internet issues it's got disrupted. Anyways, so these are the therapies. So हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी थेरेपी सबसे स्ट्रांग है इंडिया में. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई बताता नहीं है. मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी कोई कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं चेक करिए कि कौन सी थेरेपीज में. राइट, अभी आगे बढ़ते हैं. सो सिस्टम्स मैंने आपको बता दिया. अभी टॉप 10 प्लेयर, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, विच कंपनी would you like most? Which is your favorite company? Which is your dream company? Sun Pharma, Abbott, Cipla, Mankind, Lupin, Alkem, Torrent, followed by Macleods, Zydus and GSK. These are the top companies. तो आपकी कोई ड्रीम कंपनी अगर है तो उस कंपनी के बारे में डिटेल और उसके 3 ब्रांड, टॉप 3 फेवरेट ब्रांड कौन से हैं जिनका मार्केट प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है. सो दिस आर द कॉमन सेगमेंट वेयर यू वो नीड टू अंडरस्टैंड. कभी कभी मैं पूछता हूँ विच इज योर फेवरेट कंपनी, तो टाटा है, महिंद्रा है. मैं बोलता फार्मा की कोई कंपनी बताइए ना. यू आर इनटू द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, विच इज योर फेवरेट कंपनी एंड व्हाई. सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि विच इज योर फेवरेट कंपनी. लाइक जीएसटी इज योर फेवरेट कंपनी. कभी आपको पूछता है विच इज योर फेवरेट कंपनी, जीएसटी इज योर फेवरेट कंपनी. व्हाई? Because since my childhood I used to consume one of the brand called as Crocin. So whenever I'm suffering from fever, Crocin, the way they are getting the results, absolutely on track, absolutely completely satisfactory results which I am getting after taking or consuming of Crocin. So these are the basic understanding. So I use and associate with the GSK and the brand Crocin. So whenever I get an opportunity with GSK, I love to work with you. It's my pleasure, it's my honor. I can assure you that I'm the most loyal employee, loyal applicants to that particular organizations, right? Just Cipla, boss, which is your favorite company? Cipla. Kyun? Because one of your family member is suffering from asthma, and Asthalin is one of the topmost brand in Cipla. So whenever they are having asthmatic attack, Asthalin, the way they are getting the results is very very satisfactory and very very and highly efficacious. So because of this quality brand, I have been associated with that company, and I can assure you that if I get an opportunity to work with the Cipla, my dear friend, I can say that I can make my career prosperous over there. So ये छोटी छोटी पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए कि विच इज योर फेवरेट कंपनी एंड व्हाई. विच इज योर फेवरेट ब्रांड, क्या आपके कोई फेवरेट ब्रांड है? अगर नहीं है तो माय डियर फ्रेंड अपने फेवरेट ब्रांड बना लीजिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉल हो या क्रोसिन हो या बिकासूल हो या लैंटस हो या डेक्सोरेंज हो. विच इज योर फेवरेट ब्रांड एंड व्हाई? जैसे whenever I am suffering from the diarrhea, loose motion, I used to consume Electrol. So Electrol can definitely the one of the best brand of my life to save my life, to improve the quality of my life, and because of that Electrol I am much more confident, and I can be assured that this brand can definitely save many more patients' life in the coming future. So these are the association which you need to deal with. Bicasul, whenever I am suffering from illness, weakness, I used to consume called as Bicasul, which is a brand of Pfizer. So during the illness days, I used to consume called as Bicasul, which is a unique combination of B complex followed by vitamin C. So it improves the immunity, it improves and overcome from the illness, and the most important part, this brand can definitely make your life successful and pleasant. So छोटी छोटी चीजें हैं, तो आप अपने फेवरेट ब्रांड बना लीजिए और उसको नोट करके एक्सप्रेसिव करिए कि क्यों है, व्हाई है. अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है ब्रांड्स के बारे में पूछना है, किसी ब्रांड्स की कंपनी में कौन सी है, क्या काम करता है, यू कैन फ्रीली कनेक्ट विद मी. इंडिया में विच आर द बिगेस्ट सेगमेंट, एक्यूट और क्रोनिक? बताइए, विच इज द बिगेस्ट सेगमेंट? हेलो, विच इज द बिगेस्ट सेगमेंट इन इंडिया, एक्यूट और क्रोनिक? द बिगेस्ट सेगमेंट इन इंडिया इज एक्यूट, वॉल्यूम वाइज. क्रोनिक नहीं है. क्रोनिक
ग्रोथ वाइज है, बट अगर 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है इंडिया में, सो 60,000 करोड़ का मार्केट एक्यूट है, 40% क्रोनिक है। सो वॉल्यूम वाइज एक्यूट बड़ा है, ग्रोथ वाइज क्रोनिक बड़ा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, राइट? क्लियर है सबको? अगर आपको क्लियर लग रहा है कम्युनिकेशन, तो प्लीज थम्स अप करिए चैट बॉक्स में, सो दैट आई कैन ऑल्सो कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड वी ऑल लर्न टुगेदर, राइट? छोटी छोटी चीजें, सेगमेंटेशन। अभी बेसिक चीजें के लिए मैं जाता हूँ, अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ धीरे धीरे। विच आर द 2 स्किल्स आर रिक्वायर्ड? स्किल्स 2 टाइप की होती है, एक हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। विच आर द 2 स्किल्स आर रिक्वायर्ड एज ए फार्मासिस्ट? हार्ड स्किल्स मतलब टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, related to what you know about inside of that project, inside of that subject, technical things, so that on the basis of the technical knowledge you flourish your career. So hard skills is all about your technical skills, soft skills is all about your non-technical ability to deal with the people, teamwork, good decision maker, good personality, how you act, how you react, what kind of expressions are required. So those skills हमारे लिए बहुत important है my dear friend, being a student or professional. 2 things you always work it out. पहले हार्ड स्किल्स, अपने सब्जेक्ट नॉलेज को बहुत अच्छा रखें, एक्सप्रेसिव रखें। मतलब 2 चीजें समझने के लिए कि जो टेक्निकल नॉलेज है, मतलब आपके सब्जेक्ट नॉलेज है, उसको आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे बुक्स को पढ़ें, अच्छे नोट्स को रिफर करें। अच्छा कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। तो एक अपना सब्जेक्ट नॉलेज को इंप्रूव करें, अब उस सब्जेक्ट नॉलेज को आपको एक्सप्रेसिव बनाने के लिए आपको कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। तो सॉफ्ट स्किल्स आर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, कि मेरे को तो पता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फार्माकोकाइनेटिक, बट मेरे को बोलना नहीं आता है, मतलब मेरा सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। तो अपनी टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव करिए कि व्हाट डू मीन बाय काइनेटिक, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है? इट इज स्टडी डील्स विद द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट बॉडी डज, व्हाट ड्रग डज टू बॉडी, तो किस तरीके से काम करता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरा फार्माकोकाइनेटिक क्या है, फार्माकोडायनामिक क्या है, तो जो टेक्निकल नॉलेज उसको अच्छे से पढ़ें और उसको एक्सप्रेस करने के लिए अपने कम्युनिकेशन पे काम करें, अपने पर्सनालिटी पे काम करें। अभी कम्युनिकेशन को अच्छा करने का तरीका कि एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे यू रीड, राइट, लर्न by watching video or by listening some important notes, or you can say that lectures, series of lectures, webinars, so that you improve your soft skills, improve your hard skills. So these are the basic way. 30 मिनट्स आपको रोज पढ़ना पड़ेगा आपके कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए, और टेक्निकल के लिए अच्छे बुक्स, अच्छे नोट्स रिफर करें रेगुलरली। माय डियर फ्रेंड, लाइब्रेरी में विजिट करें, सिर्फ बुक इशू करने के लिए नहीं, बुक पढ़ने के लिए भी। लोग 10 दिन तक अपने पास बुक रखे रहते हैं और 11वें दिन क्या करते हैं, जाके सर मैं एक दिन और चाहिए, मेरे को पढ़ा नहीं था, मैं नोट्स नहीं किया था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हमने भी अपने कॉलेज डेज में देखा है कि वी ऑल्सो इशू द बुक बट वी आर नेवर रीड। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड, ऐसा ना करें। जब भी बुक्स इशू करते हैं तो उसको ध्यान से पढ़े टू इंप्रूव योर टेक्निकल नॉलेज। वो टेक्निकल नॉलेज इम्पार्ट योर नॉलेज, impart your communication in the counseling during or interaction with the patient, तो वहां उसके लिए यूज रहेगा, राइट? एग्री करते हैं इस चीज के लिए? तो जब भी लाइब्रेरी में जाएं, बुक्स पढ़ें, रिफर करें। कभी आपको कुछ समझ में नहीं आता, प्लीज आस्क टू योर सीनियर्स, प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट? अभी अपॉर्चुनिटी की बात करते हो, कितने डिपार्टमेंट होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि how many opportunities are there into pharmaceutical sector, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखिए इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा स्किल्स एंड स्कोप। अभी एक वर्ड मैंने बनाया है, how many opportunities are there into pharmaceutical sector? पेट्रम, one word call is पेट्रम। एक बार रिपीट करिए, पेट्रम। एक बार चैट बॉक्स में लिखिए पेट्रम। P फॉर प्रोडक्शन, E फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, T फॉर टीचिंग, R फॉर रिसर्च, सेल्स एंड मार्केटिंग, G फॉर गवर्नमेंट जॉब, H फॉर हायर स्टडीज। हेलो, अगर आपने इस पैटर्न के बारे में नहीं सोचा तो आज आप डिसाइड कर लीजिए कि वेयर यू वांट टू गो इन योर लाइफ और कैसे जाएंगे। अगर मेरे को प्रोडक्शन में जाना है तो मेरे को सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? फार्मास्यूटिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। हालांकि सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन के लिए मैं आपको बताऊंगा कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है कि मेरे को प्रोडक्शन में जाना है। देखो यहाँ लिखा है स्किल्स, ऊपर में लिखा है स्किल्स और नीचे में लिखा है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, इसको बोलता हूँ स्कोप। तो प्रोडक्शन में जाने के लिए मेरे को कौन से सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट रखना है? तो पहला सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स। दूसरा, मेरे को उस सूटिक्स में और उस सब्जेक्ट में और इंप्रूव करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? कॉस्टिंग, अपने एनालिटिकल स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा, डिसिप्लिन, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा। अभी एग्जांपल के लिए बताता हूं कि अगर मेरे को पता है कि एक टैबलेट बनाने में, सपोज करो एक 10,000 टैबलेट बनाना है और 10,000 टैबलेट बनाने के लिए मेरे को एक दिन लगता है और मेरे को रिक्वायरमेंट आई है 1 लाख टैबलेट, तो 1 लाख टैबलेट के लिए आप कितने दिन का उसको प्रोजेक्शन देंगे ऑन एन एवरेज? एक दिन में
10,000 टैबलेट बनती है मेरे फैक्ट्री में, और आप प्रोडक्शन मैनेजर है और प्रोडक्शन मैनेजर के लिए इंटरव्यू है, तो एक दिन में 10,000 टैबलेट बनती है, तो 10 दिन में कितना बनेगी? 1 लाख की रिक्वायरमेंट आई है, तो ऑन एन एवरेज कितना दिन होगा बनने के लिए, कितना डेज के लिए आपको वहां पर डालना पड़ेगा प्रोक्योर करने के लिए, इतना इतना दिन में आप डिलीवर कर पाएंगे, डिलीवरी डेट कितना रहेगा? 10 दिन। तो अपने को अपने कॉस्टिंग को इंप्रूव और एनालिटिकल को इंप्रूव करने के लिए ऐसा मेजर करिए कि एक दिन में 10, तो 10 दिन में 10,000, तो 10 दिन। अभी उसमें 2 संडे आएगा तो माइनस कर दीजिए, तो 12 दिन हो गया। एक दिन 2 दिन क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल के लिए जाएगा, एक दिन पैकेजिंग के लिए जाएगा, एक दिन आपको ऑडिटिंग करना पड़ेगा कि बराबर चल रही है कि मशीन, हो सकता है एक दिन मेंटेनेंस मोड में रहे, तो ऑन एन एवरेज 14-15 डेज लगेगा बनने के लिए। एक चीज बेसिक चीज है। दूसरी चीज होती है कि कितने मशीन लगेंगी, 4 मशीन लगेंगी एक मशीन को प्रोड्यूस करने के लिए, कितने ह्यूमन रिसोर्स लगेंगे, 2 आगे 2 पीछे लगेंगे, एक इनपुट के लिए रहेगा, एक आउटपुट के लिए रहेगा, पैकेजिंग के लिए अलग दो पर्सन लगे रहेंगे, एक पर्सन मेंटेनेंस वाला रहेगा, एक पर्सन इंजीनियर रहेगा जो पूरा चीज चेक करेगा, एक पर्सन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंटेशन वाला रहेगा, जो सारी चीज डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेगा, 2 सुपरवाइजर लगे रहेंगे। तो हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व टू डूरिंग दिस प्रोजेक्ट? 10। तो क्या 10 के 10 अवेलेबल है? कोई छुट्टी पे तो नहीं है, कोई मशीन काम कर रही है नहीं कर रही है? तो बीइंग ए प्रोडक्शन आपको सारी चीजें आपको मेजर करना है, जो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन आप वहां मेंटेन करते हैं, जो लैब बुक आप मेंटेन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, वो प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे। अभी लोग बोलते हैं आई वांट टू गो इनटू द प्रोडक्शन। बॉस हम प्रैक्टिकल में रहते हैं, हम प्रैक्टिकल में अपने नोट्स, हमारे प्रैक्टिकल नोट्स हम खुद नहीं बनाते हैं, कभी कभी हम प्रॉपर प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, कभी कभी हमको रीडिंग बराबर नहीं आती है, और हम बोलते हैं आई वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। तो अगर आप प्रैक्टिकल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाना है, प्रोडक्शन में जाना है, तो बस वहां लैब वर्क है, इसलिए लैब वर्क की वजह से प्रैक्टिकल हमारा फार्मेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लैब वर्क, हम मेडिसिन बना नहीं सकते। मेरे को ये मेडिसिन बनाना है, कहाँ बन रही है? दुकान में बन रही है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बन रही है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या है? लैब वर्क है। लैब वर्क में क्या है? एनालिसिस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे, प्रोक्यूर करेंगे, वेट करेंगे, मशीन में डालेंगे, ब्लेंड करेंगे, फिर आउटपुट इनपुट सारी चीज आने के बाद पैक होकर मेरे पास मेडिसिन आती है। तो अगर आप कॉलेज में हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा माय डियर फ्रेंड, प्रैक्टिकल को प्लीज सीरियसली करें। छोटी छोटी चीजें हैं, समझें, नोट करें, उस लैब बुक को लैब में ही मेंटेन करें, और अपने बुक अपनी रीडिंग ध्यान से रहें। जनरली रीडिंग करते हैं इधर उधर ताक झाक करके, तेरी क्या रीडिंग आई है, मेरी क्या रीडिंग आई है, बीच का लिखा के एवरेज लिख लेते हैं। नॉट एप्रिशिएटेड माय डियर फ्रेंड, प्लीज नॉट एप्रिशिएटेड। बहुत सारी चीजें देखा गया है कि लेबोरेटरी दूसरे इसका देख के लिखते हैं। इफ यू रियली वांट टू बिकम ए प्रोडक्शन ऑफिसर, प्रोडक्शन मैनेजर, माय डियर फ्रेंड, ह्यूज एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट नॉलेज, कॉस्टिंग कितना लगेगा, कौन कौन सी मशीनें हैं R&D सेंटर्स में, प्रोडक्शन यूनिट, उसमें आप चेक करेंगे। डिसिप्लिन के लिए मतलब टाइम से आएंगे, टाइम से जाएंगे, बिकॉज प्रोडक्शन यूनिट में सवेरे 9 बजे प्लांट रहता है, शाम के 7 बजे तक, तो टाइमली आप आएंगे। बायोमेट्रिक के सारी चीजें ट्रैक ट्रेस होती है, ध्यान से रहे, पूरे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करेंगे, कोई भी चीजें, कोई भी कंपनी के रिसोर्सेज को आप वेस्ट नहीं करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। सेम चीजें कॉलेज में भी, जो आपको इश्यू आ रहा है, जो भी आपको एपरेटस इश्यूज होते हैं, जो भी आपको मटेरियल यूज होता है, जो भी इक्विपमेंट डिवाइसेस रॉ मटेरियल यूज होता है, उसको प्रॉपर यूज ना करें, फेंके ना, बच जाता है आप रिटर्न कर दीजिए लैब अटेंडेंट को। माय डियर फ्रेंड, दिस इज अ बेसिक लर्निंग। सो ये अगर आपके हैबिट में रहेगा, प्रैक्टिस मेक्स एन हैबिट। अगर प्रैक्टिस फेंकने की रहेगी, प्रैक्टिस प्रैक्टिकल करने की नहीं रहेगी, तो प्रोडक्शन में आप अपना कैरियर नहीं बना सकते। इफ यू रियली वांट टू मेक योर कैरियर प्रॉस्पर्स इनटू द प्रोडक्शन यूनिट, ये छोटी छोटी चीजें इसको समझना पड़ेगा। अभी हम कहाँ काम कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर सकते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एपीआई मैन्युफैक्चरिंग। बल्क ड्रग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में। ये सब प्लांट कहाँ पर है? नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में है और साउथ इंडिया में। दीज आर द मेन 3 सेक्टर्स जिसमें बहुत एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी है। देयर आर मोर देन 20,000 pharmaceutical manufacturing units are there, so that you enter and you make your career successful over there. दूसरा आया एक हर्बल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अभी धीरे धीरे कंसेप्ट आ रहा है, जिसमें काफी एक्सक्लूसिव प्लांट्स बढ़ रहे हैं। जब से गवर्नमेंट का लोकल फॉर वोकल कैंपेन आया है, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग आर मोर एक्टिव, बिकॉज चाइना से हम अभी इंपोर्ट नहीं कर रहे, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हैज ओवरलोडेड ऑफ वर्क। सो दिस overloaded of work, this local manufacturing are really searching a good budding pharmacies जो उनके प्लांट में आए और अच्छा काम करे और अच्छा पैसा मिले। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ देम। सो दिस आर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। स्टार्टिंग पैकेज कितना मिल सकता है? 5,000 मिलेगा, 8,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, बेसिक है। डोंट लुक एट मनी फॉर 2 years, 2 साल 3 साल प्लीज पैसा ना देखें। फर्स्ट यू लर्न द थिंग्स। जो आपने 4 साल पढ़ा है, जो आपने 6 साल पढ़ा है, 10 साल पढ़ा है एम फार्मा पीएचडी करने के बाद, उसको आप एटलीस्ट 1 साल 2 साल इन्वेस्ट करिए, और टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल वे कि ये भैया रॉ मटेरियल आता है, ये फिनिश प्रोडक्ट ऐसे निकलता है, तो रीजन क्या है, व्हाट आर द रीजन, और क्या उसके एसओपीज हैं, उस एसओपी को समझें, सोचे समझे। देन आज अब हो सकता है इनिशियल लेवल में प्रोडक्शन वाले को 15,000 रुपए 10,000 रुपए मिले,
बट बॉस प्रोडक्शन हेड की सैलरी 1 करोड़ से कम नहीं रहती है, 80 लाख 90 लाख से कम नहीं रहती है। वो जर्नी वहां तक पहुंचने में उसको 15-20 इयर्स की जर्नी भी लगी है। तो हो सकता है शुरू में 10 मिले, जब नेक्स्ट आपका प्रमोशन होगा या इंक्रीमेंट लगेगा तो उसमें आपको हो सकता है 25 हो जाए या हो सकता है 30 हो जाए। डिपेंड करता है कि आपका क्या क्रेडेंशियल है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या रिकॉर्ड है। इफ यू रियली वांट टू बिकम ए प्रोडक्शन, गो अहेड। सेकंड है ई, प्रोडक्ट स्पेक्ट्रम का सेकंड ई है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत सारे लोग दुकान खोलना चाहते हैं। दो चीजें आप हमेशा याद रखना, पहला फाइनेंस का फ्लो, कितना डालना है पैसा और कब मेरे को कितने दिन बाद पैसा आएगा, तो बिजनेस प्लान, इसको बोलते हैं अपना बिजनेस प्लान आप पहले बनाइए। दूसरा, यू शुड बी गुड रिस्क टेकर, कम्युनिकेशन स्किल्स, यू शुड बी ईगल आई। मार्केट ट्रेंड कोरोना में अगर ऐसा है तो नेक्स्ट ईयर जनवरी 2021 में मार्केट ट्रेंड कितना होगा, कितना खुलेगा, कितना बिजनेस आएगा। अगर मैं 10 लाख रुपए दुकान के लिए डालता हूँ, अगर बोलते हैं ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग एग्जांपल की बता, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, हाउ यू ओपन ए फार्मेसी शॉप, एक बेसिक चीजें हैं, कितना स्क्वायर फीट की जमीन चाहिए, 120 स्क्वायर फीट चाहिए, क्या क्या चाहिए, इंटीरियर, 2 एसी, 2 लैपटॉप, मतलब 2 बिलिंग काउंटर, उसके 2 सॉफ्टवेयर चाहिए, इन्वेंट्री के पीछे थोड़ा जगह चाहिए माल भरने के लिए, कंपनी उस पर्टिकुलर दुकान अगर आपकी रेंट की है उसका रेंट साल भर का, इलेक्ट्रिसिटी साल भर का, एक फ्रिज चाहिए रहेगा 400 लीटर का या 1000 लीटर का, 400 लीटर का 50,000 रुपए का आता है, 1000 लीटर का 1,20,000 रुपए का आता है। डिपेंड करता है कि कौन से कंपनी का ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, किस तरीके का ले रहे हैं। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है टू स्टार्ट अ न्यू फार्मेसी शॉप, माय डियर फ्रेंड, द कॉस्टिंग वुड बी अराउंड 5 lakhs to 8 lakhs rupees as initial investment। अगर आपको लगता है कैमरा लगाना पड़ेगा, लगाइए, सामने साइनिंग बोर्ड लगाना है, लगाइए। अगर 120 स्क्वायर फीट का तो उसका इंटीरियर, अगर दुकान और बड़ी करना चाहते हैं 200-300 स्क्वायर फीट का लेना चाहते हैं तो उसमें इंटीरियर का खर्चा उस तरीके से पड़ेगा। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रेन्योरशिप की आप जाना कहां चाहते हैं। तो कोई भी अगर इंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहता है माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिजनेस प्लान पहले बनाए। बिजनेस प्लान में ऑब्जेक्टिव, क्या प्रोडक्ट है, कौन से कस्टमर है, क्या सर्विसेज है, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, फाइनेंशियल बैलेंस शीट कि कितना खर्चा आएगा, कितना आपको ओपनिंग अकाउंट में डालना है, कितने दिन बाद आपको रिटर्न्स आने चालू होंगे, क्या क्या आपके आउटस्टैंडिंग रहेंगे और कितने दिन में आप अपने उधारी को चुका सकेंगे। अगर जनरली लोग बैंक से लोन लेके काम करते हैं, किसी का कैश बहुत है तो नो डाउट जितना खाली हुआ उतना भरना पड़ेगा, तो उसका कैश फ्लो आप प्रॉपर्ली मेंटेन करेंगे। सो बिजनेस प्लान प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। तो बी फार्मा के बाद आप क्या क्या खोल सकते हैं, फार्मेसी शॉप खोल सकते हैं, होलसेल, C&F, इंडस्ट्री, कंसल्टेंसी, लेबोरेटरी आप खोल सकते हैं। बट ये सब के लिए आपका बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा इलॉबरेट नहीं कर सकता हूं, बट बेसिक चीजें बिजनेस प्लान के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस चालू करना चाहते हैं और बिजनेस प्लान का आपको फॉर्मेट चाहिए माय डियर फ्रेंड, तो आई विल शेयर विद यू। आप मेरे को अभी लास्ट में एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आई विल शेयर माय मेल आईडी, आप मेरे को मेल ऐड कर दीजिए, आई एम सो एंड सो पर्सन, मैं आपको बिजनेस प्लान का फॉर्मेट आपको शेयर कर दूंगा। इज वेरी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, सो दैट आप प्लान बनाना चालू करिए। इफ यू स्टक समवेयर, मी एंड माय टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट। टीचिंग में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है, पहली चीज, आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई प्रोफेसर, बिकॉज ऑफ माई टीचर्स, बिकॉज ऑफ माई सीनियर्स, उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अ बिग राउंड ऑफ क्लैप फॉर माई ऑल टीचर्स, फैकल्टी एंड प्रोफेसर्स एंड प्रिंसिपल्स, HODs into different colleges, because I am here because of my professor. I am sure you are there so because of your seniors, parents and professors. So उनकी रिस्पेक्ट करिए। टीचिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो जो कैरेक्टर आपको डेवलप करना पड़ेगा वो है आपकी सिंसेरिटी, आपका एक साउंड नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको लगता है एम फार्मा इन फार्मास्यूटिक्स से बॉस फार्माकोग्नोसी का भी नॉलेज होना चाहिए, कभी कोई फैकल्टी नहीं आता है तो यू शुड मैनेज दैट सब्जेक्ट, क्योंकि आपको मैनेज कर रहा है, कभी आप नहीं आएंगे तो वही फार्माकोग्नोसी वाला फार्मास्यूटिक्स भी मैनेज करेगा। तो कभी कभी ऑड डेज के लिए आप अपने नॉलेज को प्रिपेयर करें। यू शुड बी गुड इन कम्युनिकेशन, गुड इन डिलीवरी, इन प्रेजेंटेशन, थॉट प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए, एंड यू शुड बी मल्टीटास्किंग, मतलब एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट आप पढ़ा सकें। माइट बी गुड इन एकेडमिक, यू गुड इन स्पोर्ट्स, यू शुड बी पार्टिसिपेट इनटू इंटरस्कल college, inter competitions, inter college competitions, international symposium, poster presentations। So आपका जो sincerity है, knowledge है academic में बहुत important है my dear friend। अभी opportunities कितनी है, नो बी फार्मा में हम कम से कम 30 से 40 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक साल में 10 सब्जेक्ट प्रैक्टिकल मिला के, तो 4 साल में 40 सब्जेक्ट। एवरी सब्जेक्ट इज अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए प्रोफेसर, HOD, और रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर पोजीशन में आप जा सकते हैं, PhD कर सकते हैं। नैनो पार्टिकल्स, अभी फार्मास्यूटिक्स में एक पार्टिकल है नैनो टेक्नोलॉजी, अभी उस नैनो टेक्नोलॉजी में आप जाके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। एवरी सब्जेक्ट इज अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड द टीचर। सो टीचिंग में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो सिंसियरिटी, नॉलेज, कम्युनिकेशन, मल्टीटास्किंग स्किल्स एंड गुड इन प्रेजेंटेशन। बॉस मेरे को लैपटॉप चलाना नहीं आता है ये बोलना ही नहीं है,
सीख लो, बिकॉज बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर द फॉलोअर्स ऑफ सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो मेरे को अपने नॉलेज को बढ़ाना है, स्किल्स को बढ़ाना है। नहीं आता, किसी को कोई नहीं आता माय डियर फ्रेंड, मुझको भी नहीं आता है। हम सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे एंड वी लर्न एंड ग्रो टुगेदर। आर यू एग्री विथ माय पॉइंट? सो ये इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आप आगे जाना चाहते हैं, आपको नहीं आएगा, यू शुड लर्न इट। हो सकता है कोई 1 महीने में सीखे, कोई 10 दिन में सीखे, 15 दिन में सीखे। एक टाइमलाइन सेट करिए, सीखिए सिंसियरिटी और ग्रो करना चालू करिए। बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को लगता है कि यू वांट टू बिकम ए साइंटिस्ट। अभी साइंटिस्ट बनने के लिए रिसर्च में अगर आपको जाना है तो पहली चीज टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टेक्निकल नॉलेज में अगर आप R&D स्पेशली F&D में जाना चाहते हैं, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं R&D को फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इंडिया में बहुत सारी कंपनी जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग R&D लाइक ग्लेनमार्क है, सिप्ला है, नोवार्टिस है, माइलन है, अरबिंदो फार्मास्यूटिकल है, डॉक्टर रेड्डी है, हेट्रो है, नैटको है। देयर आर मल्टीपल कंपनीज आर देयर जिसका सबका R&D सेंटर्स है, F&D सेंटर। अगर F&D में जाना चाहते हैं आप तो फॉर्मुलेशन मतलब आपका फार्मास्यूटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए। तो R&D में बहुत सारे डिपार्टमेंट, जितने सब्जेक्ट उतने डिपार्टमेंट, उसका नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि उसमें आप न्यूली क्या इनोवेट कर सकते हैं, क्या उसमें कर सकते हैं। एग्जांपल जैसे पहला एक एग्जांपल देता हूं। पहले मेरे पास एक ब्रांड आया समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। मेरे पास ब्रांड है वोलिनी, तो वोलिनी जेल आया। तो पहले मैंने वोलिनी जेल बनाया बिकॉज ऑफ R&D, वोलिनी जेल विथ नैनो टेक्नोलॉजी। तो पहले काम करता था 30 मिनट में, अब वो काम करता है विद इन 10 सेकेंड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये छोटे छोटे जो इनोवेशन होते हैं ना, ये R&D और F&D में होते हैं। पहला एक टैबलेट था ग्लाइकोमेट GP, जो नॉर्मल टैबलेट था, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड। बाद में आया एक्सटेंडेड रिलीज, काफी लंबे समय तक काम करेगा। एक आता है सस्टेन रिलीज, एक होता है कि एक्सटेंडेड रिलीज, जैसे पेंटाप्रोजोल डोमपेरिडोन, पहले PPI है, आपको पता है पेंटाप्रोजोल डोमपेरिडोन। तो पहले नॉर्मल आया, बाद में क्या हुआ, नहीं मेरे पास एक पैलेट टेक्नोलॉजी वाला है जो एक्सटेंडेड रिलीज है, डोमपेरिडोन स्पेशल कोटेड टैबलेट है। तो वो क्या करेगा, बहुत अच्छा इफेक्टिवली काम करेगा। जो 15 मिनट में काम कर रहा है वो 10 सेकंड में काम करेगा, जो कम से कम 3 घंटा काम कर रहा है वो 15 घंटा तक काम करेगा, वंस इन ए डे। तो कन्वीनियंट डोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आए। तो बहुत सारे जो फॉर्मुलेशन में डेवलपमेंट आते रहते हैं, इनोवेशन होते रहते हैं बिकॉज ऑफ R&D। तो उसके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, यू शुड बी गुड इन टेक्निकल नॉलेज, यू शुड बी गुड इन एनालिटिकल स्किल्स। कि एनालिटिकल मतलब अलग अलग एंगल ऑफ थिंकिंग, कि इसमें टैबलेट ड्राई हो रही है तो इसमें वेट होगी, इसमें मेरे को कंप्रेस करना पड़ेगा, इसमें मेरे को ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, ये SOPs मुझको फॉलो करना पड़ेगा, इसमें ये कलर रखना पड़ेगा, इसमें ये इंग्रेडिएंट का फॉर्मुलेशन मिक्स करना पड़ेगा, ब्लेंड करना पड़ेगा। तो जो एंगल ऑफ थिंकिंग वाइड है, तो टू नर्चर योर थॉट प्रोसेस टू इंप्रूविंग योर एनालिटिकल स्किल्स, बुकिश नॉलेज बहुत होना जरूरी है, सो दैट यू यूज इनटू योर प्रैक्टिकल। डेडिकेशन, डिसिप्लिन, बिकॉज एक जगह पे खड़े होकर कंटिन्यूसली आप रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, तो आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिक स्किल्स है, इसको अगर आप डेवलप करते हैं फ्रॉम योर कॉलेज डेज टू माय डियर फ्रेंड, प्रैक्टिस मेक्स एन हैबिट, तो जब R&D में आप जाएंगे तो काफी यूजफुल रहेगा। अभी अपना करियर कहाँ बना सकते हैं, R&D, F&D, क्लिनिकल ट्रायल्स, PDL, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बहुत सारे जगह पे लैब होती है, वहां पर आप कर सकते हैं जो प्रोडक्शन में रहता है। मेडिकल टीम में जा सकते हैं, QA QC में जा सकते हैं, फार्माको विजिलेंस में जा सकते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन देखने वाला QA QC में जा सकते हैं, F&D में जा सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स में जा सकते हैं, फार्माकोलॉजी वाले। तो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग स्कोप है। तो अगर R&D में जाना चाहते हैं तो टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा रहना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज और एनालिटिकल स्किल्स, वैरायटी ऑफ थिंकिंग होना चाहिए। अपने प्रोजेक्ट्स में काम करिए। अभी एक और चीज मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्शन और R&D वालों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी मशीनें यूज होती है। तो लेशमैन करके एक बुक है फार्मास्यूटिक्स में, देखिए कि ओरल सॉलिड में कितनी मशीन्स यूज होती है, उसकी स्टडी करिए। क्यों, क्या फंक्शन है, क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से काम करती है, क्या प्रिंसिपल्स पे काम करती है, क्या चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स को आप वर्चुअल प्रोजेक्ट्स बनाइए, एक प्रोजेक्ट बनाइए कि यू वांट टू एंटर इनटू द पेरेंटल फॉर्मुलेशन। तो पेरेंटल फॉर्मुलेशंस में कौन सी मशीन यूज होती है, करंट में कौन सी, उसकी वेबसाइट में जाइए, चेक करिए क्या मैकेनिज्म है। बॉस, दैट वर्चुअल प्रोजेक्ट्स आर रियली यूजफुल फॉर यू, फॉर योर कैरियर। एक अपॉर्चुनिटी है सेल्स एंड मार्केटिंग में। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे को बी फार्मा के बाद जाना तो कहीं और था, बट मैं MR बन गया। नो प्रॉब्लम, 1000 मील ऑफ जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप, स्टार्टिंग MR, देन एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, नेशनल सेल्स मैनेजर, GM, VP, सीनियर VP, प्रेसिडेंट, सीनियर प्रेसिडेंट, फॉलोड बाय CEO। ये एक ऐसा एक स्टेप होता है इसका, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये इसका हायरार्कीज है। तो मार्केटिंग में अगर जाना चाहते हो, गुड इन कम्युनिकेशन, गुड इन इंटरपर्सनल स्किल्स, ये पेन है बेचने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट यू से, हाउ यू से, व्हाट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड टू सेलिंग दिस पेन, व्हाट आर द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, ऐसा कौन सा पॉइंट है इसमें जो आपकी कॉम्पिटिटर में नहीं है। तो पढ़ें, डिफरेंशिएट
करें, अपने ब्रांड को पोजिशनिंग करें और कहीं ना कहीं अपने ब्रांड को सेल करने में कहीं मदद करें। इंपॉर्टेंट क्या है? गुड इन प्रेजेंटेशन, गुड इन इंटरपर्सनल स्किल्स, गुड इन अपना कम्युनिकेशन, फॉलोड बाय द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में आप जा सकते हैं। तो बी फार्मा के बाद बहुत सारी कंपनी है, आप इंट्रोड्यूस करिए। तो मैंने बोला 2-3 साल आपको 2-3 साल आपको लर्न करने के लिए लगेगा। तो यू इन्वेस्ट योरसेल्फ फॉर 2 to 3 years फॉर वन कंपनी। इमीडिएटली जल्दी जल्दी स्विच नहीं करेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग में मूव करेंगे। एंड यू कैन, आई कैन अश्योर यू दैट देन जितना ज्यादा एक कंपनी में रहेंगे शुरू के 2-3 साल, तो उतना अच्छा आप सीख सकते हैं। बिकॉज बिजनेस साइकिल सीख पाएंगे कि ये ब्रांड है, इसको 2 साल आपने देखा है, तो 1 बिजनेस साइकिल इज 12 मंथ, तो 2 बिजनेस साइकिल इज 24 मंथ। तो 24 मंथ में इसका पूरा ट्रेंड आप देख लेंगे। तो कौन सी स्ट्रेटेजी कौन सी सीजन में यूज होती है और उस सीजन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से कैंपेन को रोल आउट करना है, एग्जीक्यूट करना है, स्ट्रेटेजी को समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्स के लिए। सो बेसिक है, आप सेल्स में जाएंगे। अगर बहुत लोग प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव और प्रोडक्ट मैनेजर के लिए जाना चाहते हैं, तो बी फार्म के बाद एमबीए करना पड़ेगा, फिर 1 year आपको सेल्स का काम करिए, देन यू मूव टू द मार्केटिंग। सो दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्मुलेट द स्ट्रेटेजी। तो छोटी छोटी चीजें ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। अभी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब इन द इंडस्ट्री। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट नॉलेज लाइक ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ, फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग इंस्पेक्टर बनना है बट कूल और कोल्ड में डिफरेंस नहीं पता, मुश्किल है। बेसिक चीजें, ड्रग इंस्पेक्टर जाना चाहता हूं बट मेरे को शेड्यूल याद नहीं है। ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहता हूं बट मुझको ये नहीं पता है कि मैरोपेनम किस स्टोरेज कंडीशन में रखा जाता है, कैस्पोफंगिन किस स्टोरेज में रखा जाता है, एनोडाफंगिन, पोसोकोनाजोल, वोरिकोनाजोल का कहाँ यूज है, मीनिंग नहीं है। इफ यू रियली वांट टू बिकम ए ड्रग इंस्पेक्टर, जिसको इंस्पेक्ट करना आता हो, कहाँ काम कैसे क्यों करता है, किस स्टोरेज में रखा जाता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करता है, दिस इज द रोल ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। वेरी प्रेस्टिजियस जॉब। सीट्स कम रहती है, वैकेंसीज निकलती है, तो फॉर्म देखते रहिए कब आ रही, कब जा रही, कब भर रही है, तो उसको ध्यान से रखिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे फार्माकोपिया है, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज है, लखनऊ में, दिल्ली में, कलकत्ता, मुंबई में। सो वेर एवर यू वांट टू थिंक, प्रिपेयर करिए, मूव करिए और आगे बढ़िए। ये गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए। हायर स्टडीज के लिए कोई जाना चाहता है बी फार्म के बाद, जीआरई, टफेल, प्लीज 2 चीज पे काम करेंगे। अपनी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे और अपने कम्युनिकेशन पे, बिकॉज वहां की लैंग्वेज इंग्लिश है। So if you are good in English, so you are able to communicate. You can research more and you can invest more to understand the subject and particular the technical specialty. So अपने इंग्लिश पे काम करें और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पे काम करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे दें। यूके का अलग एग्जाम होता है, यूएस का अलग एग्जाम होता है, और रो मार्केट मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक अलग अलग यूनिवर्सिटी का एक अपना सेट ऑफ प्रोसेस होता है। क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसका क्या बैंड है, क्या स्कॉलरशिप दे रहा है, कब क्यों कहाँ दे रहा है और क्या करना पड़ेगा, सारी चीजें गूगल में अवेलेबल है। मुझसे भी ज्यादा अच्छा गूगल में क्लियर कट अवेलेबल है। फ्लो चार्ट बनाइए, चेक करिए, मेल करिए, अंडरस्टैंड करिए। आई एम श्योर दैट वुड बी बेस्ट पार्ट फॉर यू। सेकंड चीज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लिंक्डइन में जो आउट ऑफ इंडिया है आप उनको अप्रोच करिए। डियर सर, with reference of so and so college, my name is so and so person, I would like to inspire to the part of this university. If I would really want to be the part of this university, could you help me out, what are the criteria and eligibility to be the part of this university? If you help me, I would be really obliged throughout my life and I can definitely follow your guidance and understanding about the subject. ये बहुत important point होता है ये higher studies के लिए, right? Guidance, थोड़ा इन्वेस्टमेंट, थोड़ा पैसा लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे क्रैक करिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाइए, अच्छा स्कॉलरशिप मिलेगा तो ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा आपके सक्सेस करने के लिए। तो बेसिक है, टेक होम इस स्लाइड से बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी अच्छी कि व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटी इनटू फार्मास्यूटिकल सेक्टर। पैट्रम, फिर से बोलिए, पैट्रम, प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग, रिसर्च, सेल्स एंड मार्केटिंग, गवर्नमेंट जॉब एंड हायर स्टडी। पैट्रम जीएस। अभी साइंटिस्ट बनना है जिसके लिए, तो उसकी जो हायरार्की जो मुझको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग करोगे ट्रेनी से, तो रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च ऑफिसर, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट, फिर प्रिंसिपल साइंटिस्ट, सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट, जनरल मैनेजर, डीजीएम, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर प्रेसिडेंट, ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसको जर्नी को करने के लिए आपको 20-25 ईयर्स लगते हैं। हो सकता है 20 ईयर्स से कम भी लगे, हो सकता है 15 ईयर्स लगे, डिपेंड अपॉन योर कैपेबिलिटी, डिपेंड अपॉन विच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू आर मूविंग एंड हाउ यू रन एंड execute the way and produce the productivity। ये आपके ऊपर है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप लोग सब इन्वॉल्व हों और जहां जहां जो जाना चाहता है वहां वहां अपना काम करे और आगे बढ़े। ये आप लोगों के लिए टास्क है आज के लिए। कैरियर रोड मैप, एक कैरियर रोड मैप में A4 साइज पेपर, ऐसा A4 साइज पेपर लेंगे, यहाँ पर ऊपर लिखेंगे कैरियर रोड मैप, अपना नाम है जैसे सूफी, तो सूफी कैरियर रोड मैप, अपना फोटो यहाँ पर लगाइए, विजन, आपका विजन क्या है, विजन को आप ईयर में चेंज करेंगे। 2008 में मैं बी फार्म किया,
2010 में मैंने एमफार्म किया, 2002 में मेरे को जॉब लगी थी, या 2011 में मेरे को जॉब लगी थी, 2013 में मैं यहाँ था, 2015 में मैं यहाँ था। दिस इज माय वर्टिकल। और 2030 में मैं कहाँ रहूंगा? आई वांट टू बी द डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ द कंपनी विच इज सर्विंग फ्रॉम मर्जर, एक्विजिशन, एपीआई, मैन्युफैक्चरिंग, एनडीडीएस, नोवल ड्रग डिलीवरी, फिर डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिटी बाय डिजाइन, ये वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो अपनी विजन को ईयर के साथ, डेजिग्नेशन के साथ डाल के लिख लीजिए। आपकी वैल्यूज क्या रहेगी? मैं वर्क ईमानदारी से करूँ, इंटीग्रिटी, सॉलिडेटरी, teamwork, improve my knowledge, continuous learning, understanding about the execution part, and the most important, we are working continuously for the development of the people, development for the organization। ये वैल्यू लिख लीजिए, अपना नाम और सिग्नेचर। कभी कोई पूछता व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर फ्यूचर, प्रॉपर्ली इस तरीके से आप कैरियर मैप को रख के इसको लैमिनेट करिए, लिखिए, और प्रॉपर्ली आपको लगता है ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ऐसा कोई करता नहीं है, मैं आपको बोलूंगा आपका कैरियर है, जितना अच्छा आप उसको मैप कर सकेंगे उतना अच्छा आप आगे बढ़ सकेंगे, राइट। 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल, इसको करने के लिए आपको लगेगा कि 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल क्या हो सकती है। अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, मेरे भी वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब में, सूफी रूमी के नाम से। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली एंजॉय, लर्न मेनी मोर थिंग्स फॉर मी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल सूफी रूमी, जिसमें बहुत सारे फार्मा के अलग अलग वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, हिंदी में है, तो आप सभी के लिए इजी रहेगा। लाइक करें, शेयर करें एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। कम्युनिकेशन अपने बढ़ाने के लिए मैंने बोला हाउ टू डेवलप योर कम्युनिकेशन, एटलीस्ट 30 मिनट्स रोज आप इंग्लिश में पढ़ेंगे जोर जोर से। टू रीड एवरी डे, लर्न इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है उसको नोट डाउन करें एंड इंप्रूव दैट वोकैब्स, हाउ यू यूज दैट वोकैबुलरी। और जितनी अच्छी बुक्स आप जितना अच्छा पढ़ेंगे, सो गेनिंग योर नॉलेज, इंप्रूविंग दैट स्किल्स एंड एस्टैब्लिश योर कैरियर वेरी सक्सेसफुल। ये बेसिक कैरियर डेवलपमेंट प्लान है जो मैंने बताया, कैरियर रोड मैप के थ्रू बताएंगे। लेट्स कंटिन्यू टू मेक अवर स्टूडेंट फील गुड एंड से द फार्मेसी इज अ ट्रूली नोबल प्रोफेशन माय डियर फ्रेंड। अभी 2-3 स्लाइड मेरा और बचा हुआ है। रूल ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है, अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, बट इंटरव्यू में मेरे को कुछ चीज तो बेसिक होती है जानने के लिए, एप्लीकेशन, अपीयरेंस, एक्शन एंड अवेयरनेस। अभी 4 है पर्सनल इंटरव्यू का रूल। पहली चीज, कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, पहला ए है एप्लीकेशन, 4A। तो पहला ए है एप्लीकेशन। अभी एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि जहां मैं जाना चाहता हूं, मेरा रिज्यूम अच्छा बना रहना चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी और हैंडी होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में जमा होना चाहिए। मेरी जो फाइल रहेगी, XYZ फाइल रहेगी मेरी, जो भी XYZ फाइल रहेगी मेरी, वहां मेरा पहला बी फार्मा, अगर आपने तो बी फार्मा पहले ओपन करते साथ मेरा यहाँ रेज्यूम रहेगा। यहाँ मेरा बी फार्मा फाइनल रेज्यूम के साथ जैसे पलटाएंगे, बी फार्मा फाइनल ईयर के मेरे सर्टिफिकेट्स आएंगे, देन 3rd ईयर, देन 2nd ईयर, फाइनल ईयर फॉरवर्ड बाय 12th करेंगे, 10th करेंगे, फिर जो अचीवमेंट्स, अवार्ड, रिवॉर्ड्स वो रहेगा, फिर आपका कुछ पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिकॉज आपका पर्सनल डिफरेंसेस के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, पासपोर्ट, वो लगे रहेंगे, कुछ आपको अवार्ड्स मिले, इंटर कॉम्पिटिशन में प्रेजेंटेशन है, रेफरेंसेस है, रिकमेंडेशन है, कहीं आपके टेस्टिमोनियल है, कुछ आपके अचीवमेंट्स है, इस पर्टिकुलर फाइल में आप बना के रखेंगे। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सारा का सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक जीरोक्स, कलर जीरोक्स आप अलग से बना के रखेंगे। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो पूरा का पूरा एक कॉपी, जो कलर जीरोक्स वाला जो आपका फाइल है, वो आप लेके जाएंगे, बिकॉज फाइनल राउंड में आपका ओरिजिनल चेक होता है, बट मीनवाइल जस्ट इंटरेक्शन के लिए आप प्रॉपर कलर जीरोक्स आप बना के रखें। और मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एप्लीकेशन को आप मेंटेन करके रखेंगे, कि क्यों जा रहे हैं, काय के लिए जा रहे हैं, एक एप्लीकेशन बना लीजिए, कौन से जॉब इंटरव्यू के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, पूरे डॉक्यूमेंट मेंटेन करिए, 2-3 ब्लैंक पेपर रखिए, कलरफुल फोटोज रखिए, इंपॉर्टेंट है कलरफुल फोटोग्राफ, अच्छे फोटोग्राफ्स, हाँ, जिसमें प्रोफेशनल शूट हो। ऐसा नहीं कि मोबाइल से कर रहे हैं, टाई प्रॉपर नहीं है, ग्रूमिंग अच्छी नहीं है, हेयर्स अच्छे नहीं है, इट नॉट लुक्स गुड, फोटो अच्छी नहीं रहेगी तो 70% रेज्यूम रिजेक्टेड हो जाते हैं। तो प्लीज ध्यान में रखें, अच्छी फोटो खिंचा के रखें, ताकि आप जब जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो सिर्फ फाइल उठाना है और जाना है, और आप उस फाइल को प्रॉपर मेंटेन करेंगे। अपीयरेंस, इंटरव्यू के जाते हैं ड्रेसेस, ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे बॉयज के लिए प्रॉपर फॉर्मल पहनेंगे, शूज पहनेंगे, स्पोर्ट्स शू तो बिल्कुल भी नहीं पहनना, बिकॉज स्पोर्ट्स शूज देखते साथ हम लोग तो रिजेक्ट ही कर देते हैं। गर्ल्स, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसेसरीज आप यूज नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे टू डिस्ट्रैक्ट योर कंसंट्रेशन। तो उस चीज को आप यूज ही ना करें जिसमें आपका कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्ट होता है। प्रॉपर फॉर्मल शर्ट पैंट पहनेंगे, गर्ल्स के लिए प्रॉपर सूट, सलवार सूट पहनेंगे जो आपको लगता है फॉर्मल है, प्रॉपर बैग रखेंगे, बहुत ज्यादा एसेसरीज यूज करेंगे। बॉयज के लिए 3 फॉर्मल शर्ट, ब्लैक, स्काई ब्लू, व्हाइट, सॉरी शर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो लाइट पिंक, स्काई ब्लू, लाइट पिंक, स्काई ब्लू और व्हाइट, ये 3 फॉर्मल शर्ट है। पैंट की बात करता हूं तो ब्लैक, ग्रे और नेवी ब्लू, ये 3 फॉर्मल पैंट के कलर होते हैं। जो भी टाई रहेगी उसी के सेट में, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से जो टाई मैच होती है, लगता है ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट एंड नेवी ब्लू टाई आप पहन के जाइए, फाइल रखे जाइए, अपने बारे में बताइए, हु आर यू, व्हाट यू वांट, व्हाई यू जॉइन दिस कंपनी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो। अभी एक्शन की बात करते हैं, चेहरे में स्माइल होना चाहिए,
हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जो भी आप बात करेंगे अच्छे से बात करेंगे, हम्बली बात करेंगे, सॉफ्ट स्पोकन, नहीं आता नो बोलेंगे, आई एम नॉट गेटिंग, आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बेसिक चीजें। और लास्ट ए है अवेयरनेस। अवेयरनेस इज ऑल अबाउट जिस जगह इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, प्लीज माय डियर फ्रेंड उसका नॉलेज रखें। कौन सी कंपनी है, उसका प्रेजेंस कहाँ है, क्यों है, कहाँ उसको अवार्ड मिला है, कौन सी प्रोफाइल निकली, कौन सी जॉब निकली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पॉइंट्स है माय डियर फ्रेंड। तो रूल ऑफ पर्सनल इंटरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज अपीयरेंस पे काम करें, एप्लीकेशंस पे काम करें, अपने एक्शंस पे काम करें, अपने अवेयरनेस के बारे में, मतलब कंपनी अवेयरनेस के बारे में, जहां आप इंटरव्यू दे रहे हो उसके बारे में पूरा चीज पता करके जाएं, रैंडमली मत जाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं जो मैंने बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चंस रखा है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, why do you think this company is good fit for you, why do you join this company, what do you want to work with this company, where do you see yourself 5 years from the now। एग्जांपल के लिए मैं एक दो क्वेश्चन बता देता हूं because I don't have time sufficient। तो tell me about yourself, my name is Sufiaz with 12 years of experience in marketing and strategy, work with different companies like Sanofi, Hetero, Sanofi, Santor, pharmaceutical, major I'm responsible for making the strategy, understanding about the portfolio, building the brand, building the organization, generating the revenue month on month, followed by I'm basically from Mumbai, and as for my education is concerned, I did pharma background, followed by I did my management graduate from distinction of so and so college. I received 2 national award and 1 inter college award national। This is all about me, and just over to you sir। 2 to 3 मिनट में आप बताएंगे, being a fresher, आप क्या बताएंगे फ्रेशर में। My name is Sufi, final year student from so and so colleges, I'm basically from this। During my college days, I received 2 award, national award। I've completed my interns from so and so college, where my main objective was to understanding the importance of standard operating procedure into the production unit, so that my major learning was that without dedication, discipline, without following the standard operating procedure, you cannot increase and maximize the productivity, and with that following that SOP, you minimizes the error, so that optimizes the resources of the organization is very important by following the SOP। This is the learning which I am getting। With this note, I am basic from so and so place, and thank you very much sir। तो अपना नाम, पता, प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ अवार्ड रिवॉर्ड उसके बारे में, कहाँ के हैं आप, वो क्लोज कर दीजिए। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू थिंक दिस कंपनी इज फिट फॉर यू। I think that this company is good fit for me because of good culture and training। I am the fresher, if I am getting good culture, good training program from your company, I am sure I can make my career prosperous, and I make my career uplifting my career into the next level। So that because of that organization positive attitude and culture, I can definitely fit for that organization। Why do you think this company is good and fit for you, why do you think this company is good and fit for you। क्यों ये कंपनी आपके लिए बहुत अच्छी है। because ये कंपनी मेरे लिए इसलिए अच्छी है because of my education, because of my skills, because of my knowledge, and I have seen, I have continuously followed because of good vision, expansion plan, good awarded, so many patented, so that if I utilize my skills and competencies into your organization, I think this company can definitely, I am also contributing to achieving awards and rewards and laurels into the coming future। so इस तरीके से जो communication होता है ना, बहुत important है। why do you want to work with this company, क्यों इस कंपनी में काम करने जाते हो। because this company is good training culture, learning culture, different leadership programs is continuously going on, so because of that top leadership, I can also make my career bright and prosperous। so ये छोटी छोटी चीज, where do you see 5 years from now, I want to see 5 years down as the middle management of the any organization where I take good decisions, handling multiple projects for the generation of revenue and part of the panel। These are the basic छोटी छोटी चीजें हैं। so ये top 10 क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें हम अपने आने वाले जो प्रेजेंटेशंस रहेंगे, आने वाले मेरे वर्कशॉप्स रहेंगे यहाँ पर, तो मैं वहां पर इलॉबरेट करूंगा, so that we all together learn one by one। सारी चीजें हम लोग बताएंगे, पूरे क्वेश्चंस, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। so अगर आपको कभी कुछ लगता है इंटरव्यू कुछ आप कंफ्यूजन है, डाउट है, तो यू कैन फ्री फील टू आस्क एनी टाइम एनीवेयर। मेरे कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, ये मैं इसलिए बता दिया हूँ, हो सकता है यहाँ के आंसर्स, मेरे चैनल है सूफी रूमी करके, वहां जॉब इंटरव्यू पे मैंने क्वेश्चन आंसर मैंने डाला हुआ है, क्वेश्चन और आंसर 7-8 मिनट्स का वीडियो है। आई एम श्योर आप वहां जाइए, लाइक जरूर करिए और वॉच करिए, पूरा वॉच करिए, बिकॉज उसमें 5 में मैंने ट्रिक्स बताया कि किस तरीके से आप इंटरव्यू को क्रैक करेंगे, किस तरीके से आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्दुल कलाम साहब ने खूब अच्छा कहा है, सर्वोत्तम व्यक्ति वो नहीं है जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, सर्वोत्तम व्यक्ति वो नहीं है जिन्होंने अवसरों का इंतजार किया, सर्वोत्तम व्यक्ति वो हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया, जीता और सफल बनाया। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके हाथ में है, अभी आप कॉलेज में हैं, तो बेसिक जो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, नोट्स को कलेक्ट करना है, प्रेजेंटेशन को, सबके पास लैपटॉप है,
सारी चीजें वहां कलेक्ट करिए, रिवाइज करिए, ट्रैक करिए, अपने प्रोग्रेस को चेक करते रहिए। उस एक्शनेबल स्टेप के थ्रू आई एम श्योर यू कैन डेफिनेटली स्कूपिंग अप योर कैरियर इनटू नाइस मैनर माय डियर फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और दैट वुड बी रियली हेल्प फॉर योर फाइनल इनिंग्स। सो छोटी छोटी चीजें हैं, प्ले ओनली टू विन, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब एंड मूव अहेड। सो ये बेसिक है। एक टेक होम के लिए मैं बोलूंगा कि सेल्फ एबिलिटीज एंड सेल्फ मोटिवेशन इज योर ग्रेट कैरियर चॉइस। अपने नॉलेज को डेवलप करें, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें, स्किल को रेगुलर शार्प करें और हैबिट्स को अच्छा करें। तो काश थ्योरी में हमेशा बोलता हूं, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड हैबिट्स मेक योर लाइफ सक्सेसफुल। एंड विद दिस मैसेज आई कैन assure you that अगर आप इस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली योर कैरियर चॉइस वुड बी वेरी गुड, वेरी फैंटास्टिक। आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर यू। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस? ये मेरा वेबसाइट है, मैं आपको बताऊं, ये मेरा चैनल है सूफी रूमी का, जिसमें मैं बोलूंगा कि हाउ टू ओपन ए फार्मेसी शॉप, इंटरव्यू टिप्स, अपॉर्चुनिटी इनटू फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। तो इसमें आप जाएंगे, चेक करेंगे, तो आपको आइडिया मिलेगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए यूजफुल रहेंगी और कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। दिस इज माय मेल आईडी rumiconsultancy@gmail.com। अगर आपको लगता है कि आपको रेज्यूम के कुछ फॉर्मेट्स चाहिए तो आप मेरे को मेल कर लीजिए। आपको इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस चाहिए वो आप मेरे को मेल कर दीजिए। आपको कुछ बुक्स चाहिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए, कुछ आपको लर्निंग स्टफ चाहिए, एजुकेशनल स्टफ चाहिए, आई एम ऑलवेज बी देयर फॉर यू। मी, माय कॉलेज स्टाफ, केके वाक कॉलेज ऑफ फार्मेसी, फैकल्टी मेंबर्स जितने, डॉक्टर सुशील सर हैं, डॉक्टर किशोर जैन सर हैं, आप कभी भी किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली रीच टू मी एज वेल। सो माय टीम विल डेफिनेटली असिस्ट यू विद इन 24 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम। एनी क्वेश्चन? Thank you, sir. माय प्लेजर सर। Thank you for your nice explanation. The way in which you have given idea to our students about new horizons in career opportunities in pharmaceutical world 2020. Very fabulously, enthusiastically and energetically you explain all these things. Extraordinary way of explanation, sir. I personally experienced that you explain in very nice way that why I choose the career in pharmacy, why I become a pharmacist. You explain in very nice way the answer of this question, very basic question. You explain in today's session. Similarly, in today's session you explain about interview skills and interview questions. I hope our students will definitely understand this and will implement all this in their near future. Now, without wasting much time, I request Dr. Rahul Kakadis sir to proceed for the question and answer session. Please. Dr. Rahul Kakadis sir, please. Good morning, sir. Good morning. There are some questions from audience and we have also I have. So first question is because our mostly students are belong to some rural areas or taluka level areas. They have a major issue of language, which is as we know that English is a dominant language which is getting preferred in industry. So most of the student ask me that how to overcome the language barrier during the graduation and after the graduation. So what are the measures they have to take if they want to become a very fluent and dominant in this language? So please share your thoughts. बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल। मैं आपको इसका आंसर हिंदी में देता हूं। अपने हैबिट्स में देखिए, इंप्रूव तो करना चाहते हैं, कितने लोग उसके लिए कितना काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग बोलते हैं मेरे को इंग्लिश सर, आई वांट टू इंप्रूव माय इंग्लिश, आई वांट टू इंप्रूव माय कम्युनिकेशन। माय डियर फ्रेंड, कितने लोग उस पर मेहनत कर रहे हैं, कितने लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नहीं सीख पाएंगे, पहली चीज। और करना है तो रोज 30 मिनट्स जोर जोर से आप कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी लैंग्वेज की बुक जो इंग्लिश में हो वो आप पढ़िए। एटलीस्ट रोज 30 मिनट्स पढ़िए फॉर 30 डेज। तो 30/30 का रूल है, जोर जोर से पढ़िए। अभी अब मैं आपसे पूछता हूं, कुछ कुछ होता है मूवीज का हीरो कौन है, तो आप फट से बोलेंगे शाहरुख खान। कभी खुशी कभी गम का हीरो कौन है, तो आप बोलेंगे शाहरुख खान।
उसमें और कौन हीरो था, आप बोलेंगे ऋतिक रोशन। उसका गाना कौन था, आपको याद रहेगा। गाना कब, कौन से गाना, कौन और कौन उसमें एक्ट्रेस थी, आपको याद रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे को कभी कभी इमेजिन करना पड़ेगा। इंग्लिश में आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, आपको उसमें एंगेज होना है, इन्वॉल्व होना है प्रैक्टिकली। जैसे मैंने बताया कभी खुशी कभी, अभी आपको कभी खुशी कभी गम बोल रहा हूँ, या कुछ कुछ होता है, या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी बोलो, तो आपको ना उसका लोगो याद आ रहा होगा, थिएटर में लगी है कहीं पर। तो जब भी आपको इंग्लिश में आपको पढ़ना है, न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया लीजिए, या आपको लगता है कोई मैगजीन लीजिए, एडीआर लीजिए, फार्मा टाइम्स ले लीजिए, जो आपके लेवल की बुक है। एटलीस्ट उसको जब पढ़ेंगे तो समझिए उसका मीनिंग कहाँ जा रहा है, क्या उसका रूल है, कहाँ आपको मूव करवाना है। 30 मिनट्स 30 डेज तक जोर जोर से अपने कमरा बंद करके पढ़ना चालू करिए, और कोशिश करिए कि आप कम्युनिकेट करते समय अगल बगल आप एक दूसरे से बात करिए। अभी वोकैब्स को इंप्रूव करने के लिए लिंक्डइन में जाइए, इंस्टाग्राम सबके पास है, यस और नो? इंस्टाग्राम सभी के पास है कि नहीं है? सभी के पास सोशल मीडिया है। तो इंस्टाग्राम में हाउ टू लर्न इंग्लिश के बहुत सारे पेजेस हैं, उस पेजेस को फॉलो करिए आप। तो आपके जो रेगुलर अपन मोबाइल निकाल के रेगुलरली हम लोग स्क्रॉल करते हैं ना इंस्टाग्राम में, तो बार बार उसके मैसेज आएंगे, इसकी मीनिंग ये है, WH फैक्टर को यहाँ यूज कर सकते हैं, हाउ टू आस्क अ क्वेश्चन, हाउ टू रिप्लाई, हाउ टू एबल टू कम्युनिकेट, हाउ यू गेन द कॉन्फिडेंस, व्हाट यू वियर, व्हाट यू नॉट वियर, व्हाट यू ग्रूमिंग। तो इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में इंग्लिश सेंटेंसेस, इंग्लिश फॉर्मिंग सेंटेंसेस, कम्युनिकेशन, न्यूज चैनल को फॉलो करिए, और जितने आलतू फालतू लोग हैं सबको अनफॉलो करिए, बिकॉज दैट विल कैप्चर योर, आपकी प्रोडक्टिव टाइम को उन्होंने कैप्चर कर रखा है। माय डियर फ्रेंड, लाइफ आपकी है, पैसा आपको कमाना है, मम्मी पापा को आपको खुश करना है, कॉन्फिडेंस आपको लाना है। आपके कैरियर में मैं चाहता हूं आप सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं। बिकॉज एक दिन में बोलूंगा पढ़ो 30 नहीं पढ़ेंगे, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। मैं बोलता हूँ इसमें तो फॉलो कर सकते हो, इसमें तो एटलीस्ट 30 मिनट जोर जोर से पढ़ सकते हो, मोबाइल से पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक मोबाइल रखो और एक डायरी रखो, मोबाइल में कठिन वर्ड आएगा, डिफिकल्ट वर्ड आएगा, उसको नोट करते जाना, और स्लोली एंड ग्रेजुअली। जैसे एक न्यूज आई है कल, आज की न्यूज आई है, वन ऑफ द बायोकॉन ने रिलीज किया है कि 2021 में जून 21 में कोविड की वैक्सीन आएगी। न्यूज पढ़िए। सो उनकी ओपनिंग कैसी है, उनकी फ्रेजेस क्या है, क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो लॉन्चिंग में क्या वर्ड यूज कर रहे हैं। फिर एक डिस्कशन हो रहा है कि कमिंग कैंपेन आने वाला है दिवाली का, बिग बाजार दिवाली ऑफर, उसमें क्या कैंपेन में वर्ड यूज कर रहा है, किस तरीके से वो ओपनिंग कर रहा है। तो ध्यान से जब पढ़ेंगे ना सिचुएशन में, अच्छा दिवाली मतलब धमाका रहेगा, डिस्काउंट्स रहेगा, ऑफर रहेगा, एनलाइटिंग रहेगा, रीइंफोर्सेस रहेंगे कुछ मैसेजेस का, काफी टेम्पटिंग फीलिंग रहेंगी, हैप्पीनेस रहेगा, एक गोल्डन मूवमेंट रहेगा, एक क्राउडेड एनवायरमेंट रहेगा, मेरा ब्रांड को हाईलाइट करना है। तो एक सिचुएशन क्रिएट करो कि जो न्यूज पढ़े वो सिचुएशन कहाँ की है, और उसके क्या वर्ड्स कीवर्ड्स हैं उसको नोट डाउन करो। स्लोली स्लोली आप उसको गेन करेंगे, और इसको 30/30 के रूल्स को आप डालिए कि पढ़ने से पहले कौन सी सिचुएशन की न्यूज आप पढ़ रहे हो, चाहे वो दिवाली का हो, चाहे वो दशहरा का हो, चाहे न्यू ईयर का हो, चाहे मूवी लॉन्च करने का हो, या आपको कॉलेज का कुछ न्यूज है, उसको ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद उसको कोशिश करिए कि उसके कीवर्ड्स को नोट डाउन करें। माय डियर फ्रेंड, ये काफी यूजफुल रहेगा। कुछ दिन बाद आपकी वोकैब्स स्ट्रांग हो जाएंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन धीरे धीरे आप बोलने लगेंगे, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, आधा इंग्लिश आधा हिंदी। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू आर कंप्लीटली स्पीकिंग इंग्लिश ओनली। दैट वुड बी रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज इन यू ओनली, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें आप प्रैक्टिस करिए, 30/30 रूल, ये याद रखिए। नेक्स्ट, आई होप इट इज यूजफुल फॉर यू। Very much, sir. The rule what you said definitely students will follow, and we will also help Yes. them to follow that. Sir, next one is Please. now during session also you said that there are opportunities like M.Pharm, MBA, or certain other government jobs too. They can now itself they can decide and they can choose that path. But somebody, if they he or she want to become an entrepreneur, so what are the skills they have to learn? Otherwise, how they can plan entrepreneurship after graduation or during the graduation? What are the skills they have to develop to become an entrepreneur? Can you give Okay. enlighten this? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ यू रियली वांट टू इंटरव्यू, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। मैंने बोला दो स्किल्स, एक टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मतलब कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ, जैसे आई एम ए मार्केटिंग कंसल्टेंट, बस मार्केट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरे ब्रांड्स का नॉलेज होना चाहिए, उसकी फंक्शनिंग पता होना चाहिए, पोजिशनिंग, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, कॉम्पिटिटर मैट्रिक्स एनालिसिस, ये मुझको थॉरो होना चाहिए 26,000 ब्रांड के। इफ आई एम ए मार्केटिंग कंसल्टेंट, सो पहला मेरा हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स।
हार्ड रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट कि कौन से बिजनेस में, जैसे आपको लगता है आप फार्मेसी शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको पूरे ड्रग्स के बारे में टेक्निकल पता होना चाहिए। अब होता है सॉफ्ट स्किल्स में क्या इंप्रूव करना है, तो आपकी इंटरप्रेन्योर, आपकी फोरकास्टिंग स्किल्स का मतलब है बिजनेस ऐसा है किस तरीके से मूव करेगा। तो बहुत लंबा मत सोचो, आज दुकान खोला कितने कस्टमर आएंगे ये पता होना चाहिए आपको। एक दूसरी चीज है कि इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, कितना पैसा आपने डाला है, तो उस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स कितने दिन से आना चलेंगे। तो ये बिजनेस प्लान जिसको मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल एनालिसिस आना चाहिए। फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, छोटा सा वर्ड है। मैंने 10 लाख डाला, मेरे हाथ में 10 लाख कब आएगा, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एंटरप्रेन्योर की बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे कस्टमर मेरे दुकान में कैसे आएंगे, तो उसके लिए जो मैं मार्केटिंग एक्टिविटी करने वाला हूं, जो प्रचार करने वाला हूं, जो प्रमोशन करने वाला हूं, क्या वो मेरे बिजनेस प्लान में है, वो बिजनेस प्लान जो बना रहा हूं उसमें रेडी है। अगर नहीं है तो प्लीज, ये वैसा बात हो गया कि मैं नाव में तो निकल गया बट मेरे पास पता नहीं जाना कहाँ है, मैं कहीं भी कहीं जाऊंगा। तो बिजनेस प्लान आपको बताएगा कि मैंने दुकान खुला है तो साल भर में मेरे को 15 लाख का बिजनेस करना है, तो 15 लाख के बिजनेस के लिए इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 लाख। ओके, 5 लाख रुपए मैं डाल रहा हूँ और मेरे को साल भर में 15 लाख का बिजनेस करना है। तो कितने एम्प्लॉयज रहेंगे, कितने खर्चे रहेंगे, कितने ओवरहेड्स रहेंगे, कितने आउटस्टैंडिंग रहेगी, कहाँ कहाँ से मैं प्रोडक्ट लूंगा, कहाँ कहाँ मैं प्रोडक्ट बेचूंगा, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आपके लिए आपके फोरकास्टिंग, योर बिजनेस एनालिटिकल, फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए, और गुड इन कम्युनिकेशन, बिकॉज आप कस्टमर को कम्युनिकेट करते हो एक्सटर्नली और एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करते हो इंटरनली। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू synchronize the team, lead the team, plan the team, organize the team, direct the team। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड एम्पावरिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। एंड यू शुड बी गुड इन मोटिवेशन, आपको पता होना चाहिए, जल्दी नाराज नहीं हो। कोई बोल देगा यार तेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इट्स ओके, आई विल इंप्रूव इट सर, प्लीज हेल्प मी, I need your constructive positive feedback, I will improve my services, I improve my product। तो ये जो पेशेंस होता है ना, ये जो एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, इट्स अंडरस्टूड, आज मेरे को कस्टमर डांटेगा तो अब डांटेगा तो हंसना नहीं है, डांटेगा तो अंडरस्टैंड करना कि ये मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। नहीं आता, सीखा, सीखने के बाद पुरानी चीज, खराब चीज को हटा दिया, अच्छी चीज को मैंने ऐड ऑन किया। तो कंस्ट्रक्टिव मतलब अच्छी चीज डाला, डिस्ट्रक्टिव मतलब जो मेरे को लगता है कि मेरे लिए यूजफुल नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, उसको मैं हटा दे गया। तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आपके अंदर होना चाहिए। और बिजनेस करना अगर आपको है माय डियर फ्रेंड, whomsoever, बिजनेस प्लान तैयार करें। और बिजनेस प्लान का फॉर्मेट चाहिए आपको, तो मेरा मेल आईडी लिखा हुआ देखिए, rumiconsultancy@gmail.com। आप मेरे को मेल करिए कि मेरे को सर बिजनेस प्लान, बिजनेस फॉर्मेट का आप मेरे को बुक भेज दीजिए, एक मेरे को फॉर्मेट भेज दीजिए कि ऑब्जेक्टिव कैसा लिखा जाता है, शॉर्ट एनालिसिस कैसा लिखा जाता है, मैं प्रॉपर्ली आपको भेज दूंगा। और वर्क करिए, अपडेट रहिए, और अपने आप को, अपने हार्ड स्किल्स को, मतलब अपने टेक्निकल नॉलेज को डेवलप करते जाइए, ये काफी यूजफुल रहेगा। बिजनेस स्टार्ट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ 60-70% नॉलेज में स्टार्ट करेंगे, बचा हुआ 40-60% नॉलेज आपको ऑन जॉब लर्निंग में आ जाएगा। ऐसा मत सोचना कि पूरा आएगा तब मैं बिजनेस चालू करूँ, बिजनेस ऐसा नहीं होता है। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क। व्हाट इज रिस्क? इट्स अ कैलकुलेटिव रिस्क। आधा आता है, आधा सीखना है। तो जो सीखना है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा सीखने में मैं ना जाऊं कि मेरे को पूरा सीखना है, आधा आता है, आधा मेरे को सीखना है। जो सीखना क्या है, मेरे को प्रोसेस, ऑपरेशन में बेसिक प्रैक्टिकल चैलेंजेस को मेरे को ओवरकम करना आना चाहिए। तो लीडरशिप स्किल्स इज रिक्वायर्ड। तो बिजनेस प्लान जब बनाएंगे तो सारी चीजें उसमें आएंगी, एलिमेंट्स, और अपने नॉलेज, स्किल्स, आपकी प्लानिंग, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग बिहेवियर एंड एम्पावरिंग योर पीपल, इंटरनल एक्सटर्नल, इसको देखते हुए चले, that would be really gaining for you, right? So I'm sure that would be a path breaking results for you, and that will be guiding and navigating for your organization. Sir, I'll take two more questions. One question is most of the students they are feeling that after graduation they will do job for 1 or 2 years in marketing or sales, and then they will go for higher studies like MBA. Some students are feeling that go for MBA then go for job. So which one is the option is good as per you? Which option is? अपने पास फाइनेंस है ना, अगर अपने पास फाइनेंस अच्छा है ना, कि बहुत पैसा है, तो कर लेना चाहिए एमबीए। और अपने को लगता है कि हमारे पेरेंट्स के ऊपर बर्डन आ रहा है ना, तो बी फार्म करके कुछ दिन जॉब करना चाहिए, फिर एमबीए करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, फॉर मी बी फार्म के बाद कंटिन्यू एजुकेशन के लिए, फर्स्ट यू कंप्लीट योर एजुकेशन, बिकॉज बी फार्म के बाद जब पैसा आता है ना सैलरी का, तो पढ़ने का मन नहीं लगता। दिस इज द प्रैक्टिकल हार्ड कोर फैक्ट है, दिस इज अ रियल वन। तो बी फार्म के बाद एमबीए कर लीजिए। तो बी फार्म में आपने टेक्निकल सीखा,
MBA में आपने मैनेजमेंट एंड बिजनेस सीखा, तो जब दोनों को आप पढ़ के आप फील्ड में यूज करेंगे ना, तो शायद उसकी प्रोडक्टिविटी शायद मल्टीपल टाइम्स रहेगी। बी फार्म के बाद आपको शायद मैनेजमेंट का नॉलेज नहीं है, तो अगर आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बी फार्म में MBA करें, फिर आप मूव करें। और अगर लगता है फाइनेंशियल क्रंच है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बी फार्मा करिए, बी फार्म के बाद सेल्स एंड मार्केटिंग कर लीजिए और ऐसी कंपनी ज्वाइन करिए कि वही आपको MBA कराए, करस्पॉन्डेंस MBA अच्छे कॉलेज से। तो दिस इज ऑल्सो ए बेटर ऑप्शन। नो वरी, दोनों ही अच्छा है, लेकिन ग्रेजुएट पूरा एजुकेशन कंप्लीट करके आप फील्ड में जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। Sir, last question is most of the students are preparing for government job like drug inspector and all these things. So, but for that they need some industry experience too. So, बच्चे पूछ रहे हैं कि after M.Pharm जाके they will go for a competitive exam, or after B.Pharm itself they will get some experience and then they will go for competitive exams and appear for drug inspector exams. तो M.Pharm करना जरूरी है क्या? The question is very long. My question is नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास ऐसे कुछ ड्रग इंस्पेक्टर हैं बॉम्बे में जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, कमिश्नर, जो डॉक्टर हैं, PhD करके उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर बने। Because knowledge plays a very significant role for such kind of important profile, responsible position है वो। तो ऐसा नहीं है कि बी फार्म के बाद एम फार्म के बाद जाइए, PhD के बाद जाइए, नो वरी अबाउट इट। एज लिमिट है तो आप चेक कर लीजिए एज लिमिट कितनी है। एज लिमिट इज इंपॉर्टेंट। अब ये बात और है कि मैं 10-15 साल बाद मेरे को अचानक से याद रहा कि आई वांट टू बिकम ए ड्रग इंस्पेक्टर, सो एज लिमिट इज वन ऑफ द ऑब्स्टिकल्स फॉर यू, सो उसको अवॉइड करिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बी फार्मा एम फार्म करिए, जो ड्रग इंस्पेक्टर के लास्ट के 3-4 साल के सैंपल पेपर है उसको रिफर करिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करिए। कोई सीनियर्स होंगे आपके कॉलेज में, आपके जूनियर्स होंगे, कोई नहीं होता, आप लिंक्डइन में जाइए, डालिए ड्रग इंस्पेक्टर, बहुत सारे ड्रग इंस्पेक्टर के नाम आएंगे, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और उनसे पूछिए, सर एज आई एम गो थ्रू योर लिंक्डइन प्रोफाइल, इट्स क्वाइट इंप्रेसिव that you are having a drug inspector profile and you are doing a good job over there. I've seen into the different recommendations. Sir, I am a student of so and so college. I am also with a part of this government job imminent profile. Could you guide me? Could you help me? Facebook में ड्रग इंस्पेक्टर डालिए, बहुत सारे निकलेगा। लिंक्डइन में डालिए, बहुत सारे निकलेगा। बहुत सारे लोग होंगे और पीपल में जाके क्लिक करिए, तो जितने ड्रग इंस्पेक्टर इंडिया के, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, सैंपल पेपर ले सकते हैं, उनसे आइडिया ले सकते हैं, क्लू ले सकते हैं। यूट्यूब में ड्रग इंस्पेक्टर बनने के बहुत सारे अलग अलग वीडियोस हैं, आप उस वीडियो को देखिए, समझिए, काफी यूजफुल रहेगा। तो ऐसा मत सोचिए कि बी फार्म एम फार्म, जहां तक आप पढ़ सकते हो आप पढ़िए। फर्स्ट कंप्लीट योर एजुकेशन, देन यू encash that education after joining the job or into the business, right? So ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। सर thank you very much, sir. The way you explain everything regarding government job, entrepreneurship, job opportunities, everything, I think our students definitely will get advantage of that. Now सर इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, सर इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा बस। हेलो, हाँ बोलिए सर। इसमें वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन इट, पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। सो कीप अप योर लर्निंग हाई, कीप अप योर मोमेंटम हाई, लेट इट बी द पार्ट ऑफ गुड एमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन। जहां भी जाना चाहते हैं आप, जस्ट फुलफिल योर ड्रीम, फुलफिल योर विजन, वी ऑल आर विथ यू। आज के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप सबको बोलूंगा कि वी ऑल लर्न टुगेदर। आप को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आई एम श्योर प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सूफी रूमी के नाम से, SUFIROOMI। एंड आई स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर किशोर जैन, नारखेड़े सर, ऑल द फैकल्टी मेंबर्स of KK Wagh College of Pharmacy Nasik, who has given me a wonderful opportunity. Zillion thanks to all the participants who has come across from different places on this webinar, and all the management who has given us a beautiful platform, a learning platform for each one of you. And thank you very much, all the members, all the faculty members, staff, participants. Once again, all the best for your future. जहां भी आप safe रहें, सुरक्षित रहें, हमेशा खुश रहें और healthy life को enjoy करें। Thank you very much, sir. Be a part of our program, sir. Our Professor Shinde is going to present a vote of thanks. So I'm requesting Professor Shinde to present vote of thanks.
questions. Thank you, sir. Good afternoon to everyone. I am Professor Manoj Shinde. It's a great honor to me present the vote of thanks on this occasion. On the behalf of KK Wagh Education Society and KK Wagh College of Pharmacy, I would like to thanks to our today's speaker, Supriya. It was very motivational, enriching, and wonderful. Sir has made us aware regarding the different career opportunities in pharmacy professions. Also shared their views about how to face interviews, and in very simple short term, the Petram GH, you have explained about the career opportunities in pharmacy profession. We would like to hear from you, sir, in future also. I would like to express gratitude to management and trustees of KK Wagh Education Society for granting the permission to conduct the webinar. I would like to extend my sincere thanks to Dr. Kishore Jain, sir, Coordinator KK Wagh Education Society, Pharmacy Institutes, and Principal KK Wagh College of Pharmacy, Nasik. Also, I would like to thank Professor R.A. Hirole, Principal KK Wagh Institute of Pharmacy, Chandori, for their continuous guidance and motivations. My special thanks to technical team and organizing team. This webinar could not have been successful without them. I would like to thank all the participants for wonderful response for their webinar. Last but not least, thank you to all my colleagues for their help during this webinar. Here, with the due permission of sir, I would like to conclude the sessions. Thank you, Shinde sir, and thank you, Dr. Sufi. It was a wonderful session, very high quality presentations, up to the mark, actually pinpointed. There were some salient points which were explained, like that 30 days and 30 minutes, and some examples were given which are worth practicing. And I think the students, as well as even the staff members who are trying to groom the students, will also take these tips positively and start practicing, because this is also a very important aspect. Only bookish knowledge will not help, and we are all enriched with some additional knowledge about how to present our students, and students are enriched in knowing how to prepare for things, and what is the pharmacy career, and what are the avenues, and what are the different openings, because things which come from your mouth are more practical because you are into the field. And we wish to continue this endeavor. And I think yesterday only the government had given the latest guidelines about the lockdown, and many things are relaxing, and maybe we are expecting in the last week of November, maybe the things will become normal. The rate of infection in India is coming down and down comparatively, and maybe whether we have reached the herd immunity or thing, I don't know. Things are becoming more now normal, and when we physically start our teaching learning process one of these days, and when the life becomes normal, we wish to see you in person also, addressing to our students in our seminar hall, and we will be definitely interested in having a regular basis interaction with you. And this trial is highly successful, because we always try to have a trial session, and I think Dr. Narkhede will also agree, and he will be in touch with you on regular basis. Thank you for a wonderful session, and Mr. Ayaz, and I think we can close the session. Shinde sir, you can close the session, and we will be definitely in touch with you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Shinde sir. Thank you, Sushil sir. And once again, Eid Mubarak, belated. I sent you by message also, and now physically I tell you online. Okay, sir. Thank you so much, and
Thank you so much and wishing you all a happy weekend. Enjoy weekend. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Bye. Have a great day. Thank you. Stay home. Thank you so much. Stay Bye. safe. Thank you. Thank you so much. Stay connected. Bye. Bye.